Namaskar everyone, your English mentor is here with another chapter from your supplementary book Vistas, that is chapter number 6, On the Face of It, written by Suzanne Hill. Now if we take out the literal meaning of this chapter, face is something that we are having, and here on the face means there is something on the face. So about this the story is this, and this is very small, and we can say this is not the entire story having the proper beginning till the ending. It is just a part or glimpse of the story of one of the big story that is here written by Suzanne Hill. First, I have some information about the writer, then we'll see line by line explanation, and after that completion of the chapter, we'll just go through the textual question answer, right? So Suzanne Hill, she is an English author of fiction and non-fiction. Means she was related with both type of writing. Fictional means factual writing and imaginary writing. She was born in 1942. Suzanne has written numerous novels, collection of short stories, children's fictions, and she is known as the respected reviewer, critic, and broadcaster editor. So she is we can say she is playing so many प्रोफेशनल पार्ट्स इन अ लाइफ. उन्होंने बहुत सारी नॉवेल्स लिखी हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं, बच्चों के लिए फिक्शनल स्टोरीज़ लिखी हैं, और उनको कैसे जाना जाता है? रिव्यूअर. मीन्स व्हेन यू आर गिविंग और रिव्यूइंग समथिंग. व्यू इज कॉल्ड व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग योर ओपिनियन और व्यू अबाउट समथिंग. रिव्यू इज कॉल्ड on presented view, again you are giving your opinion, and from your review the piece of writing is judged. Critic, she was a critic, editor, and a broadcaster as well. Broadcaster is called, means when you are broadcasting your writing piece, your lectures, so that number of the students can study and learn from your broadcasting. Whatever you are teaching, through that teaching, number of the students can be benefited. Broadcast can be radio broadcast, television broadcast, बहुत सारे होते हैं, तो वो ये भी काम करती हैं. So this is the chapter On the Face of It, written by Suzanne Hill. So before we read, just this is a play featuring an old man and a small boy meeting in a farmer's garden. So ये क्या है? ये एक छोटा सा प्ले है. प्ले आप बोल सकते हो. दिस इज अ स्किट. स्किट बेस्ड या प्ले क्या होता है? वेयर सम सीन्स आर डिस्क्राइब्ड. सीन होते हैं, सीन नंबर 1, 2, 3 चेंज होते रहते हैं. सीन कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर्स स्टेटमेंट्स ऑफ दोज कैरेक्टर्स आर गिवन, डायलॉग्स जिसको आप बोल सकते हो वो होते हैं. तो उस फॉर्म में ये जो चैप्टर है वो एक प्ले फॉर्म में है, राइट? जो कहाँ पे होता है? इसमें एक मैन है और एक छोटा लड़का है जो मिलते हैं फार्मर्स गार्डन में. गार्डन का सीन है जो स्टार्टिंग का है. The old man strikes up a friendship with the boy who is very withdrawn and defiant. What is the bond that unites the two? अब जो old man है, he just want to create a friendship. Okay, he was seeking. Okay, he was just we can say na allowing his friendship to that boy, but that boy was not in that experience to have the friendship with old person. उस boy की मतलब वो जो लड़का है वो उस इच्छा में है ही नहीं, उसको फ्रेंडशिप करनी ही नहीं है. Why? Because he was really withdrawn and defiant. हारा हुआ है, ऐसा लगता है कि वो पिछड़ा हुआ है. विड्रॉन मीन्स ही जस्ट वॉन्टेड टू विड्रॉ हिमसेल्फ फ्रॉम एवरीथिंग. वो हर चीज़ से अपने आप को खींचना चाहता है पीछे. ही डज नॉट वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ ईच एंड एवरीथिंग. नाउ क्या होता है? एक बॉन्ड क्रिएट होता है या नहीं होता है? कैसे वो दोनों यूनाइट होते हैं, मिलते हैं, उनमें फ्रेंडशिप क्रिएट होती है? दिस चैप्टर इज ऑल दैट अबाउट. सो दिस इज वेरी यूनिक चैप्टर वेयर वी आर हैविंग एन ओल्ड मैन एंड अ बॉय एज अ मेन कैरेक्टर, और उनके बीच में जो कन्वर्सेशन होता है रिलेटेड टू फ्रेंडशिप, रिलेटेड टू देयर ओन लाइफ एक्सपीरियंसेस, वही हम पढ़ेंगे. चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले सीन 1 स्टार्ट होता है. मिस्टर लैम्स गार्डन, देयर इज एन ओकेजनल साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग एंड ऑफ ट्री लीव्स रसलिंग. अच्छा, जब भी कोई प्ले या स्किट स्टार्ट होता है तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन दिया जाता है. सीन क्या है, कैसी साउंड आ रही है, द पर्सन, फीचर्ड पर्सन, हु इज़ ही और शी, जो सीन 1 में है. काफ़ी बहुत, और कभी कभी बहुत डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन भी दिया जाता है. एज देयर वॉज इन मदर्स डे, वन वॉज द चैप्टर
इन क्लास 11A यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दैट. तो दिस इज़ नॉट वेरी यूनिक, आप पहले इससे इंट्रोड्यूस हो चुके हो, ठीक है. ब्राउनिंग वर्जन था, वो भी प्ले फॉर्म में था. मदर्स डे है, वो भी प्ले फॉर्म में था. सेम ऐसे ये फॉर्म में है. इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है कि सीन 1 है वो कहाँ पे, गार्डन में है. किसका गार्डन है? मिस्टर लैम्ब्स गार्डन. तो हम बोल सकते हैं ये हमारा जो इस प्ले के फर्स्ट कैरेक्टर है मिस्टर लैम्ब. ओकेजनल साउंड, ओकेजनल इज कॉल्ड, कभी कभी आवाज़ सुनाई दे जाती है. जो बर्ड सॉन्ग मतलब चिड़ियाँ बोल रही हैं. ट्री रसलिंग, रसलिंग इज कॉल्ड जब पत्तियाँ आपस में टकराती हैं हवा की वजह से जो आवाज़ होती है, दैट इज कॉल्ड रसलिंग साउंड. तो बता रहे हैं कि जो गार्डन है वहाँ पे अभी चिड़ियों की आवाज़ सुनी जा सकती है और मिस्टर लैम्ब वहाँ पे बैठे हुए हैं. पत्तियों की आवाज़ें आ रही हैं, ये सारी आवाज़ें आ रही हैं. देन डेरीज फुटस्टेप आर हर्ड एट द वॉक्स he walks slowly and tentatively through the long grass. अब यहाँ पे दूसरा कैरेक्टर आता है, वो है हमारा डेरी. ठीक है, डेरी एक स्मॉल बॉय है. मैन कौन है? मिस्टर लैम्ब्स. डेरी एक स्मॉल बॉय है जिसके पैरों की आवाज़ सुनी जा सकती है, जो बहुत धीरे धीरे चल रहा है. एंड टेंटेटिवली इज कॉल्ड मीन्स कोई एम नहीं है, कोई पर्पज़ नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं है उसका आने का, वो ऐसे ही चल रहा है धीरे धीरे. मीन्स आपको पता हो कि वाई आर यू गोइंग वेरी स्लोली स्टेप बाय स्टेप, कि आपको ये करना है. बट उसको कुछ ऐसे पता नहीं था, उसका कोई पर्पज़ नहीं था. वो गार्डन में आता है, किसी और के गार्डन में आया है, तो वो बहुत धीरे धीरे चल रहा है और वो लंबी लंबी ग्रास के बीच में से निकलता है. He pauses, then walks on again. He comes round a screen of the bushes, so that when Mr. Lamb speaks to him, he is close at hand and Derry is startled. ये सारी चीज़ें भी क्या, दीज आर नॉट इन द डायलॉग फॉर्म, ये नरेशन है सारा. नरेशन किसको बोलते हैं? जब आप कोई चीज़ डिपिक्ट कर रहे हो. ठीक है, प्ले में पहले ये हुआ, वो ये कर रहा था, साउंड इसकी थी, सीन ऐसा था, कौन कौन वहाँ पे बैठा हुआ था, मौजूद था. ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होता है, आप बता रहे हो. ठीक है, इन्फॉर्म कर रहे हो कि भाई क्या क्या हो रहा है. तो दिस इज कॉल्ड नरेशन. सो ऑल दीज दैट आर रिटन विद इन द ब्रैकेट, दिस इज नरेशन. ठीक है, वो नरेशन कर रहे हैं. तो यहाँ पे वो बताते हैं कि बहुत धीरे धीरे चल रहा है. वो पॉज यानी कि रुक जाता था, फिर चलने लगता था. उसके बाद वो जब चलते चलते आता है स्क्रीन ऑफ बुशेस. स्क्रीन इज कॉल्ड द कंटिन्यूअस बुशेस वर देयर. बुशेस मतलब छोटी छोटी जो झाड़ियाँ होती हैं, उनके गार्डन में थी बहुत सारी झाड़ियाँ हैं, वो उनके पास आता है. और तभी जो है मिस्टर लैम्ब बोलते हैं. जो मिस्टर लैम्ब वहाँ पे बैठे हुए हैं, अचानक से वो उसको देखते हैं और बोलने लगते हैं. एंड जैसे कि क्लोज एट हैंड इज कॉल्ड नियर. ओके, क्लोज एट हैंड मीन्स नियर. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्लोज एट हैंड, दिस इज कॉल्ड नियर. जब वो काफ़ी ज़्यादा पास आ जाता है, मतलब जहाँ पे मिस्टर लैम्ब बैठे होते हैं, डेरी धीरे धीरे आ रहा है गार्डन में, उसको नहीं पता है कि समबडी इज़ देयर इन द गार्डन. तो जब वो काफ़ी पास आ जाता है, मिस्टर लैम्ब अचानक से बोलते हैं. तो जो डेरी होता है, ही इज स्टार्टल्ड, इज कॉल्ड वंडर सरप्राइज्ड. वो थोड़ा सा चौंक जाता है, बिकॉज ही वॉज थिंकिंग एज नोबडी इज़ देयर इन द गार्डन. लेकिन वहाँ पे मिस्टर लैम्ब की अचानक से जो आवाज़ आती है, तो वो थोड़ा सा चौंक जाता है. राइट. सो यहाँ पे हमने देखा क्या था, एक गार्डन का सीन है, मिस्टर लैम्ब बैठे हुए हैं, वहाँ पे एक बच्चा आता है, डेरी है जो बॉय है, टीनेज बॉय दिखाया गया है इसमें, और वो धीरे धीरे आ रहा है उस गार्डन में. बट अचानक से जब मिस्टर लैम्ब की आवाज़ आती है, तो वो सरप्राइज्ड हो जाता है. Mr. Lamb, mind the apples. Now here, this is the first statement, means the play started by Mr. Lamb. किसका है first statement? Mr. Lamb का है. वो क्या बोल रहे हैं? Mind the apples. Mind is called टेक केयर या बी केयरफुल आप बोल सकते हो. जब वो चल रहा है वहाँ पे, तो बहुत सारे जो फ्रूट्स हैं, दे आर लाइंग डाउन इन द गार्डन बिटवीन द लॉन्ग ग्रास, नीचे बिखरे हुए हैं. तो वो कहते हैं कि भाई ध्यान से चलो. माइंड द एप्पल्स मतलब वहाँ पे एप्पल्स पड़े हुए हैं. व्हाट हु इज दैट हु इज देयर. अब डेरी को पता नहीं होता है कि वहाँ पे कौन है, तो वो अचानक से पूछता है कि कौन है. हु इज दैट, व्हाट मीन्स क्या, कौन है वहाँ पर, कौन है. 2 बार वो पूछता है. मिस्टर लैम्ब बोलते हैं, लेम्स माई नेम, माइंड द एप्पल्स, crab apples those are, windfalls in the long grass you could trip. अब लैम्ब बोलते हैं कि लैम्ब, मेरा नाम लैम्ब है, मैं बोल रहा हूँ, और ये जो एप्पल्स हैं ये क्रैब एप्पल्स हैं. क्रैब इज कॉल्ड सार एप्पल्स. थोड़े से खट्टे हैं एप्पल, मतलब बहुत ज़्यादा मीठे नहीं हैं एकदम. आप उसको ये नहीं बोल सकते यू कैन प्लक एंड ईट दैम, नो. वो थोड़े से सार हैं टेस्ट में. एंड वो बोलते हैं कि वहाँ पर जो एप्पल्स पड़े हुए हैं, दैट इज़ ड्यू टू, दोज आर ड्यू टू विंडफॉल, मतलब हवा की वजह से वो पेड़ से नीचे गिर गए हैं एंड लॉन्ग ग्रास में छुप गए हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं. तो व्हेन यू आर वॉकिंग इन
बिटवीन ऑफ द लॉन्ग ग्रास, तो हो सकता है वो एप्पल क्रश हो जाए, खराब हो जाए, एंड दैट्स व्हाई ही वाज सेइंग माइंड द एप्पल्स। और दूसरी चीज क्या हो सकती है, यू कुड ट्रिप। ट्रिप इज कॉल्ड यू कैन फेल डाउन, ठीक है, तुम गिर भी सकते हो, तो थोड़ा सा ध्यान से चलो। डैडी बोलता है आई दे आए तो दिस वॉज एन एम्प्टी प्लेस, आई थॉट आई डिडंट नो देयर वाज एनीबडी हियर। उसने कहा कि आई देयर, मतलब उसको अचानक से जब उन्होंने बोला तो उसको क्या लगा, रही मैंने सोचा था यहाँ पे कोई भी नहीं है, ये खाली जगह है, इसीलिए मैं यहाँ पे आया था, बट मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर भी कोई हो सकता है। तो दिस वॉज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ डेरी एंड मिस्टर लैम। जब वो मिस्टर लैम को बोल देता है कि मुझे पता नहीं था यहाँ पे कोई है, बिकॉज वो सोच के आया था कि खाली जगह है, तो ही जस्ट वांटेड टू गो आउट फ्रॉम देयर, वो वहाँ से बाहर जाना चाहता है। मिस्टर लैम बोलते हैं दैट्स ऑल राइट, आई एम हियर, व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ बॉय, दैट्स ऑल राइट। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर यहाँ पे मैं हूँ तो इट्स ओके, क्या डरने की ज़रूरत है, मीन्स नो नीड टू फेयर अबाउट इट। आई थॉट इट वॉज एम्प्टी एन एम्प्टी हाउस। अगैन वो बोलता है कि वहाँ पर एक घर भी है, यानी कि जिस गार्डन में वो आया है वहाँ पर घर भी है, तो वी कैन से दैट इज़ द प्राइवेट गार्डन और पर्सनल गार्डन, मतलब वो पब्लिक प्लेस पे नहीं आया है, ठीक है। तो यहाँ पर वो बोलता है कि मुझे लगा ये जो घर पड़ा है ये खाली है। So it is, since I am out here in the garden, it is empty until I go back inside. In the meantime, I'm out here and likely to stop. A day like this, beautiful day, not a day to be indoors. उसने कहा कि हाँ अभी भी ये खाली है। मिस्टर लैम क्या बोलते हैं, हाँ भाई खाली है क्योंकि मैं बाहर हूँ, मतलब वो घर किसका था, मिस्टर लैम का घर था। मिस्टर लैम अपने घर से बाहर आके गार्डन में बैठे हुए थे, तो वो कह रहे थे भाई घर खाली है क्योंकि अभी मैं बाहर हूँ। वाई, बिकॉज अभी जब मैं अंदर चला जाऊँगा तब ये घर खाली नहीं रहेगा, जब तक मैं बाहर हूँ ये घर खाली है। मीन टाइम आउट हियर मीन्स अभी अभी थोड़े टाइम के लिए मैं बाहर हूँ, एंड लाइकली टू स्टॉप, और मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ, बिकॉज ये जो दिन है उसमें कोई भी अंदर रहना नहीं चाहता है भाई, बिकॉज दिस इज़ अ ब्यूटिफुल डे। तो हियर वी आर जस्ट लुकिंग एट कि सिंपल कन्वर्सेशन चल रहा है दो स्ट्रेंजर्स के बीच में, जहाँ पर जो छोटा बच्चा है वो जाना चाहता है वहाँ से क्योंकि उसको लगा कोई नहीं है इसीलिए वो आया था, बट वहाँ पे मिस्टर लैम बोलते हैं कि इट्स फाइन, मीन्स यू कैन स्टे हियर। नाउ डैडी सेड पैनिक, आई हैव गॉट टू गो, मुझे जाना है। पैनिक इज कॉल्ड, आप बोल सकते हो थोड़ा सा वो डर जाता है और टेंशन में आ जाता है, ठीक है, तो आप बोल सकते हो इन टेंशन, थोड़ा सा वरीड हो जाता है वो, और वो बोलता है कि नो आई हैव गॉट टू गो, मुझे जाना है। मिस्टर लैम सेड नॉट ऑन माई अकाउंट, आई डोंट माइंड हु कम्स इनटू द गार्डन, द गेट्स ऑलवेज ओपन, ओनली यू क्लाइम द गार्डन वॉल। उसने कहा कि नॉट ऑन माई अकाउंट, माई अकाउंट इज कॉल्ड बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज ऑफ मी या ड्यू टू मी आप बोल सकते हो, मतलब मेरे कारण जाने की जरूरत नहीं है। वाई, बिकॉज आई डोंट माइंड, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आई डोंट हैव एनी ट्रबल इफ एनी वन हु एवर सो वॉन्ट हु कैन कम इन माई गार्डन। बट सब लोग मेरे गार्डन में गेट से आते, क्योंकि मेरे जो गार्डन का गेट है हमेशा खुला रहता है। गेट खुला होने का मतलब क्या है, यू आर अलाउड टू कम, आप आ सकते हो वहाँ पे, ठीक है, बट मुझे नहीं पता कि वाई यू क्लाइंब फ्रॉम द गार्डन वॉल, यानी कि डेरी कहाँ से आया था, डेरी गार्डन की दीवार से ऊपर से, वो गेट से नहीं आया था, ठीक है। ही जस्ट वॉन्टेड और ही अज्यूम दैट दिस इज अ लोनली गार्डन, लोनली हाउस, नोबडी लिव्स हियर, तो वो दीवार से आया था, क्लाइंब करके चढ़ के ऊपर से दीवार से फिर नीचे आया था। तो दैट्स वाई ही वाज सेइंग कि ओनली यू क्लाइंब द वॉल, मतलब सारे लोग हैं जो मेरे गेट से आते हैं, मुझे अच्छा लगता है, आई डोंट हैव एनी ट्रबल, तुम पता नहीं क्यों दीवार के चढ़ के आए हो गार्डन की। डैडी बोलता है थोड़ा एंग्रीली, यू वर वॉचिंग मी, तो मुझे देख रहे थे। देन मिस्टर लैम सेड आई सॉ यू बट द गेट्स ओपन, ऑल वेलकम, यू आर वेलकम, आई सिट हियर, आई लाइक सिटिंग। यस, मैंने तुम्हें देखा था लेकिन गेट तो खुले थे ना, ऑल वेलकम, सब लोगों का स्वागत है, मतलब गेट खुले रहने का मतलब क्या है, ऑल आर अलाउड, whoever wants to come they can come and you are also welcome, तुम्हारा भी स्वागत है, मैं यहाँ पर बैठा हूँ क्योंकि मुझे बैठा अच्छा लगता है। डैडी ने कहा I would not come to steal anything, I had not, मैंने यहाँ पर कुछ चुराने नहीं आया था। Now Derry was justifying his arrival कि वो क्यों आया था, why, because उसको लगा हाँ अब तो इन्होंने पकड़ लिया कि मैं गार्डन की वॉल से आया था, गार्डन की वॉल से होगा मीन्स कुछ गलत इंटेंशन हो सकता है, क्या होगा वहाँ पे, चोरी करना, क्योंकि वहाँ पे एप्पल्स लगे हुए थे, एप्पल के ट्री थे, तो उसने कहा कि नहीं नहीं मैं चोरी करने नहीं आया था यहाँ पे। मिस्टर लैम सेड नो नो द यंग लेट्स स्टील स्क्रम द एप्पल्स, यू आर नॉट सो यंग, उन्होंने कहा कि नो, जो बच्चे हैं
यंग लेट्स का मतलब होता है बॉयज़, जो यंग बॉयज़ हैं, टीनेज बॉयज़ हैं, वो आते हैं यहाँ पे एंड दे स्क्रम द एप्पल्स एज वेल. स्क्रम्प इज कॉल्ड स्टील. वो चुराते भी हैं एप्पल. जब मैं यहाँ नहीं होता हूँ या मैं अंदर होता हूँ या मेरी प्रेजेंस में भी कभी कभी आते हैं, उनको लगता है कोई नहीं है, वो आते हैं और एप्पल चुरा के ले जाते हैं. वाई? बिकॉज इट इज़ नॉट वेरी हार्ड टू स्टील द एप्पल्स. वाई? बिकॉज एप्पल्स फेल डाउन जस्ट बिकॉज ऑफ द विंड. ओके, जो विंड होती है उसकी वजह से वो गिर जाते हैं और बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर यंग बॉयज़ और वो चुरा कर ले जाते हैं. तो ये कन्वर्सेशन चल रहा है डेरी और लैम के बीच में. डेरी सेड आई जस्ट वॉन्टेड टू कम इन टू द गार्डन. मैं तो सिर्फ गार्डन के अंदर आना चाहता था, दैट्स इट. सो यू डिड, हेयर वी आर. देन उसने कहा कि हाँ, तो तुम आ गए और हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं. देन डेरी सैड यू डोंट नो आई एम. तुम मुझे नहीं जानते. अ बॉय 13 और सो. लैम ने कहा कि भाई 13 या 14 ईयर्स के बॉय हो. देन 14 पॉज, बट आई हैव गॉट टू गो नाउ, गुड बाय. उसने कहा कि मैं 14 का हूँ और अब मुझे जाना है, गुड बाय. नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, जस्ट अ गार्डन, जस्ट मी. उसने कहा कि तुम किस चीज़ से डर रहे हो? आई एम हियर. मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है और ये गार्डन है, गार्डन में कैसा डर? But I'm not afraid because people are afraid of me. अब वो क्या बोलता है? उसने कहा कि मैं नहीं डर रहा हूँ, जो लोग हैं वो मुझसे डरते हैं. अब हमने क्या देखा, थोड़ा सा फॉर्मल कन्वर्सेशन के जो बिसाइड्स है वो कन्वर्सेशन शुरू हो गया है. डेरी जस्ट वांटेड टू टेक, और डेरी इज टेकिंग दिस कन्वर्सेशन टुवर्ड्स समथिंग एल्स. उसने कहा कि लोग मुझसे डरते हैं. वाई शुड दैट बी? भाई क्यों डरते हैं? डेरी ने कहा एवरीवन इज, सभी लोग मुझसे डरते हैं. It doesn't matter who they are or what they say or how they look, how they pretend I know I can see. So like इससे कोई मुझे मतलब नहीं है कि वो कौन हैं, क्या करते हैं या क्या बोलते हैं या कैसे दिखते हैं, बट मुझे पता है कि वो सभी लोग pretend करते हैं. Pretend it called to show something that is fake, that is not real. बहाना करना, ठीक है, कुछ फेक दिखाना. उसने कहा कि मुझे दिखता है, मुझे पता है, I can see. मतलब लोग कहना कुछ और चाहते हैं, वो दिखाते कुछ और हैं, लेकिन मुझे पता है कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं. See what? क्या दिखता है तुम्हें? What they think? मुझे पता है कि वो लोग क्या सोचते हैं. तो यहाँ पर क्या कन्वर्सेशन चल रहा है? दैट इज एंटायरली सेंटर्ड ऑन दैट बॉय. ओके, दैट बॉय वॉज शेयरिंग समथिंग रिगार्डिंग टू हिज पर्सनल लाइफ. What do they think then? क्या सोचते हैं वो? You think here is a boy, you look at me and then you see my face and you think that's bad. उसने कहा कि अब तो आप मुझे देखिए, क्या सोचेंगे कि भाई एक लड़का है, और फिर आप मुझे देखेंगे, फिर आप मेरे फेस की तरफ देखेंगे और आप ये सोचेंगे that's bad, ये बहुत बुरा है. Then that's a terrible thing. That's the ugliest thing I ever saw. You think poor boy, but I'm not poor. Underneath you are afraid. Anybody would be. I am. When I look in the mirror and see it, I am afraid of me. आगे वो क्या बोलता है कि जब आप मेरे फेस की तरफ देखेंगे जो बहुत ज़्यादा बुरा है, आपको लगेगा ये बहुत खतरनाक चीज़ है. टेरेबल, हॉरिफिक थिंग. दैट्स किसके लिए आया है? फेस के लिए आया है. डेरीज के फेस के लिए आया है. उसने कहा कि ये आपको लगेगा कि अरे ये तो सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है और ये सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ है, अगलीस्ट थिंग. बट आई एवर सॉ, मतलब मैंने कभी भी इतना ज़्यादा हॉरिफिक फेस और इतना गंदा फेस नहीं देखा. आप ऐसा सोचोगे और फिर आप सोचोगे पुअर बॉय. पुअर यहाँ पे किसके लिए आया है? पिटीफुल बॉय, जिसको आप बोल सकते हो बेचारा. ठीक है, वो वाले पुअर यहाँ पे वेल्थ के रिलेशन में नहीं आया है. पिटीफुल आप बोल सकते हो बेचारा. आप मुझ पे मर्सी करोगे बट आई एम नॉट, लेकिन ऐसा मैं नहीं हूँ. मैं पुअर या बेचारा नहीं हूँ. अंडरनीथ you are afraid. Underneath is called आपके according to you, according to your thoughts. आपके according क्या है? You are afraid. मतलब आप क्या हो? आप अपने दिमाग में, मतलब अपने विचारों में आप मुझसे डरे हुए हो. You don't want to talk to me, you don't want to look at me again. आप डरे हुए हो. Anybody would be, कोई भी हो सकता है. I am, मैं भी हूँ. जब भी मैं शीशा देखता हूँ, मिरर में देखता हूँ, तो मैं खुद भी डर जाता हूँ. अब ये सारा जो कन्वर्सेशन है, ये जो स्टेटमेंट है, डेरी वॉज sharing something with that strange person. He was totally unaware about the identity of Mr. Lamb, but even then the conversation was a kind, or it has taken the turn
वेयर डैडी वॉज शेयरिंग ऑल दीज थिंग। तो डैडी के अकॉर्डिंग जो उसका फेस है, कोई भी उसके फेस को देखता है तो वो डरने लगता है या उससे नफरत करने लगता है। वाई? बिकॉज एवरीबडी इज रिगार्डिंग हिज फेस एज अ टेरेबल थिंग, एज एन अगलीस्ट थिंग, एज द अगलीस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड। वाई? ये सारे उसके अकॉर्डिंग है, मतलब डैडी के अकॉर्डिंग है। कोई भी उसको पसंद नहीं करता है उसके फेस की वजह से। समथिंग इज देयर इन हिज फेस कि वो खुद भी डर जाता है जब वो मिरर में देखता है। मिस्टर लैम सेड नो, नॉट अ होल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू। तो क्या कि नहीं, पूरा तो नहीं, होल ऑफ यू इज कॉल्ड, इफ यू आर टेलिंग अबाउट योर फेस दैट्स फाइन, बट होल ऑफ यू कैन नॉट से अगलीस्ट थिंग फॉर यू। यस, डैडी कहता है यस आई एम। Later on, when it's a bit cooler, I'll get the ladder and the stick and pull down those crab apples. अब यहाँ पे मिस्टर लैम क्या करते हैं? मिस्टर लैम was diverting the topic. क्या कर रहे हैं वो? टॉपिक को डाइवर्ट कर रहे हैं। Now Mr. Lamb is an old man. उनको अच्छे से पता है कि which kind of emotions or sentiments are there in this age. किसी भी चीज़ से जब आपको hurt feel होता है, negativity आती है, we should not talk more about that. We should try to avoid that. तो वो यही करते हैं, वो कुछ और बात करने की कोशिश करते हैं। वो क्या बोलते हैं कि थोड़ा सा जब ठंडा हो जाएगा मैं अपना लैडर लेकर आऊँगा, सीढ़ी लेकर आऊँगा, या जो सीढ़ी होती है ऊपर चढ़ने वाली नसैनी, वो लेकर आऊँगा, और जो क्रैब एप्पल्स लगे हुए हैं ना वहाँ पे, सार एप्पल्स, मैं उनको तोड़ूंगा। यहाँ पर जो मिस्टर लैम है वो डेयरी से कुछ और अपने बारे में कुछ शेयर कर रहे हैं। एंड हियर दे आर राइप फॉर इट। राइप इज कॉल्ड, अब वो पक चुके हैं, मीन्स दे आर रेडी टू ईट। आई मेक जेली, मैं इसकी जेली बनाऊंगा। जेली यू मस्ट हैव सीन, जो हम लोग ब्रेड या सैंडविच पे लगाते हैं, जेली, मिक्स जेली, फ्रूट जेली, एप्पल जेली, जैम और जेली लगाते हो ना, तो उस तरह की जो जेली होती है, ठीक है, दैट ट्रांसपेरेंट एंड दैट इज कंसीडर्ड एट डिजर्ट, बहुत पसंद होती है बच्चों को, वो जेली मैं इससे बनाऊंगा। It's a good time of the year, September. Look at them, orange and golden. That's magic fruit. I often say, but it's best picked and made into jelly. You could give me a hand? Then उसके बाद वो बोलते हैं कि मैं इसकी जेली बनाऊंगा, क्योंकि ये मंथ जो है ये बहुत अच्छा चल रहा है, सितंबर मंथ वाज गोइंग ऑन। और वो बोलते हैं कि देखो कितना प्यारा रंग है, ऑरेंज और गोल्डन, यानी कि ब्राउन और ऑरेंज गोल्डन कलर के जो एप्पल्स हैं, दे आर परफेक्ट टू मेक जेली। मैं इनकी जेली बनाऊंगा। एंड हियर यू कैन पिक्ड मीन्स मैं बेस्ट, जो सब अच्छे अच्छे एप्पल हैं उनको मैं तोड़ूंगा और फिर उनकी जेली बनाऊंगा। और यू कैन गिव मी अ हैंड। नाउ गिव मी अ हैंड इज कॉल्ड हेल्प। यू कैन हेल्प मी, ये फ्रेज है पूरा, ये फ्रेजल वर्ब है। गिव मी अ हैंड इज कॉल्ड हेल्प, तो मेरी हेल्प कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर वो जो मिस्टर लैम है वो उसको ऑफर कर रहे हैं एक इनविटेशन, या बोल सकते हैं इनिशिएशन। वो एक उसको जॉब ऑफर कर रहे हैं। जॉब का मतलब बस थोड़ा टाइम का एक टास्क है। वाई? बिकॉज ही जस्ट वॉन्टेड टू डाइवर्ट हिज माइंड। What have you changed the subject for? People always do that. Why don't you ask me? Why do you do what they all do and pretend it isn't true and isn't there? In case I see you looking the mind and get upset, I will tell you, you don't ask me because you are afraid to. उसने कहा कि भाई आप अपना सब्जेक्ट क्यों चेंज कर रहे हो? डैडी पकड़ लेता है ये चीज़ कि भाई मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, मिस्टर लैम अपने सेब की बात कर रहे हैं, एप्पल्स की बात कर रहे हैं। आई वॉज टॉकिंग टू हिम अबाउट माई फेस, बट उन्होंने सब्जेक्ट बदल दिया। तो वो बोल देते हैं, डैडी उनको बोलता है कि आप अपना सब्जेक्ट क्यों चेंज कर रहे हो, आप बात क्यों चेंज कर रहे हो? हमेशा सारे लोग यही कर रहे हैं, बट आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो ये सारी चीज़ें? वाई डोंट यू आस्क मी? आप मुझसे क्यों नहीं पूछते हो ये सारी चीज़ें? दूसरे लोग भी यही करते हैं, वो टॉपिक चेंज कर लेते हैं। एंड वाई डू यू डू वॉट दे ऑल डू? जो सब लोग कर रहे हैं वो आप क्यों कर रहे हो? और ये क्यों प्रिटेंड करते हो? ये ट्रू नहीं है, ये वहाँ पर नहीं है। यानी कि अब आप प्रिटेंड कर रहे हो कि आपको कुछ भी नहीं हुआ, एवरीथिंग इज़ फाइन, बट मुझे पता है कि आप मेरा चेहरा देखकर डर गए हो, आपको भी बहुत सारी चीज़ें पूछनी हैं, तो आप प्रिटेंड क्यों कर रहे हो? कोई और चीज़ क्यों बोल रहे हो? जो आपको पूछना है आप मुझसे वो पूछो। और मैं अगर मेरी बात करूँ तो आई कैन सी यू लुकिंग एंड माइंड एंड गेट अपसेट। मैंने आपको देखा है कि आपको ये चीज़ माइंड की है। माइंड इज कॉल्ड, आपने इस चीज़ पे ध्यान दिया है और आप अपसेट हो गए हो, आप मेरा चेहरा देखकर दुखी हो गए हो।
I'll tell you, मैं आपको बताता हूँ, यू डोंट आस्क मी, आप मुझसे मत पूछो क्योंकि मुझे पता है कि आप डर गए हो। मतलब आप मुझे अपना कोई इस तरह की जर्नल टॉक या सिंपल सी टॉक करके, यू जस्ट डोंट इग्नोर द टॉपिक ऑन विच वी आर टॉकिंग अबाउट, यू कैन आस्क मी, क्यों नहीं पूछते हो आप मुझसे, मुझे पता है, मैं देख सकता हूँ कि आप मेरा चेहरा देखकर डर गए हो। नाउ मिस्टर लैम सर, यू वॉन्ट मी टू आस्क, से सो दैन, ठीक है, तुमको लगता है कि मुझे पूछना चाहिए, चलो बताओ क्या हुआ। आई डोंट लाइक बींग विद द पीपल, एनी पीपल। अब डेरी धीरे धीरे खुलना शुरू होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में वो जाना चाहता था, बट जैसे जैसे लैम ने बात किया, करना शुरू किया, अब डेरी उनको बताना चाहता है कि मुझे नहीं अच्छा लगता, किसी के साथ भी रहना मुझे नहीं अच्छा लगता। आई शुड से टू लुक एट इट, आई शुड से यू गॉट बर्डन्ड इन अ, आई एम सो सॉरी, यू गॉट बर्न्ड इन द फायर। मुझे ये कहना चाहिए, मुझे आप ये देखो कि मुझे क्या कहना चाहिए कि ये जो है वो जल गया है एक फायर में। आप क्या बोलोगे? आई शुड से दैट यू आर थिंकिंग दैट इट इज़ गॉट बर्न्ड इन द फायर। मतलब जो उसका फेस था, उसको ये लगता था कि वो क्या बोलेंगे कि तुम्हारा जो फेस है वो फायर में जल गया, मतलब तुम जल गए हो। तो अब वो आगे बताना चाहता है, बिकॉज डेरी वॉन्टेड दिस थिंग कि वो उनसे पूछें। जब वो नहीं पूछते हैं तो वो पूछता है कि भाई आप मुझसे क्यों नहीं पूछ रहे हो, तो लैम पूछते हैं चलो ठीक है बताओ। तो वो बताता है कि आपको ये लगता है कि मेरा फेस जो है वो जल गया है। डेरी सेड नॉट इन अ फायर, ना फायर में नहीं, आई गॉट एसिड ऑल डाउन दैट साइड माई फेस एंड इट बर्न्ड इट ऑल अवे। तो यहाँ पर जब मिस्टर लैम पूछते हैं कि आई शुड से, मुझे क्या कहना चाहिए, मैंने शायद यहाँ पे डेरी बोल दिया बट दैट वाज मिस्टर लैम। मिस्टर लैम ने उससे पूछा कि अगर मुझे क्या बोलना चाहिए, अगर मैं इसको देखूंगा तो मुझे ये कहना चाहिए कि तुम जल गए हो, आग से जल गए हो, फायर से जल गया है। तो डेरी क्या बोलता है? डेरी बोलता है नॉट इन द फायर, आई गॉट एसिड ऑल डाउन एट माई एट और ऑफ फेस एंड इट बर्न ऑल एट अवे। तो उसके फेस पे क्या गिर गया था? एसिड गिर गया था, केमिकल गिर गया था और इसने उसके चेहरे को जला दिया। इट एट माई फेस अप, इट एट मी अप एंड नाउ इट्स लाइक दिस एंड इट वोंट बी एवर एनी डिफरेंट। उसने कहा कि इसने मेरे फेस को खा लिया। खा लिए का मतलब क्या हुआ? मीन्स ही वॉज जस्ट टेकिंग यूजिंग दिस वर्ड टू टेक आउट द फ्रस्ट्रेशन। जो फ्रस्ट्रेशन है उसके अंदर, जो नेगेटिविटी भरी हुई है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन जो है उसके अंदर, वो बता रहा है कि इस एसिड ने मेरे पूरे फेस को खा लिया, मतलब ख़त्म कर दिया। इसने मुझे, मेरे फेस को ख़त्म कर दिया, इसने मुझे ख़त्म कर दिया। एंड अब ऐसा है कि इट वोंट एवर बी एनी डिफरेंट। मुझे अब कोई नहीं लगता कि कभी भी कुछ भी चेंज होगा, हमेशा मैं ऐसा ही रहूँगा और यही सस्टेन है। मेरे लिए यही ट्रुथ है कि कभी भी मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, कोई भी डिफरेंस नहीं हो सकता, मैं हमेशा ऐसा ही रहूँगा। हमने क्या देखा, क्या हुआ है उसके फेस पे? उसका जो फेस है वो जल गया है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, एट वन साइड, एक साइड पे जल गया है, वहाँ पर एसिड गिर गया था, केमिकल की वजह से उसका जो फेस का स्किन है वो बर्न हो गया था। मिस्टर लैम सेड नो, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, मीन्स कुछ डिफरेंस। डेरी ने क्या बोला कि आप कुछ भी नहीं हो सकता, कोई भी चेंज नहीं होगा। मिस्टर लैम ने कहा नो, आरंट यू इंटरेस्टेड? डेरी ने कहा कि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। यू आर अ बॉय हु केम इन टू द गार्डन, प्लेंटी डू, आई एम इंटरेस्टेड इन एनीबडी, एनीथिंग, देयर इज नथिंग गॉड मेड दैट डजंट इंटरेस्ट मी। लुक ओवर देयर, ओवर बिसाइड द फार वॉल, व्हाट कैन यू सी? रबिश। अब वो कहते हैं कि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है ना मेरी बात में। मतलब उसको क्या लग रहा था, मिस्टर लैम वॉज नॉट पेइंग अटेंशन और टेकिंग इंटरेस्ट वट एवर ही शेयर्ड। तो उसने कहा कि नो, मुझे इंटरेस्ट है, यू आर द बॉय, तुम एक लड़के हो जो इस गार्डन में आए हो, बहुत सारे आते हैं, प्लेंटी इज कॉल्ड मेनी कम्स, बहुत सारे आते हैं और जितने भी आते हैं मुझे सब में इंटरेस्ट है। कोई भी मेरे गार्डन में आता है, मुझे सब में इंटरेस्ट है। एवरीबडी एंड एनीथिंग, किसी भी लोग में इंटरेस्ट है, कोई भी चीज़ में इंटरेस्ट है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो गॉड ने बनाई है और उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं हो। देन ही इज़ अगेन पॉइंटिंग आउट समथिंग टू हिम। उन्होंने कहा कि देखो, सामने देखो उस वॉल की तरफ, तुमको क्या दिखता है? तो डेरी बोलता है रबिश। मुझे क्या दिखा? कूड़ा दिखा, गार्बेज। Then Mr. Lamb said, rubbish, look boy, look, what do you see? उन्होंने कहा कि rubbish, कूड़ा दिखा तुमको, फिर से देखो, look at there, just grass and stuff, weeds। कहा कि भाई घास है, कुछ सामान है, और कुछ weeds is called dry leaves and grass, जो सूखी पत्तियां होती हैं, जो बहुत पतझड़ में झड़ जाती हैं, सूख कर गिर जाती हैं, खराब हो जाती हैं, उनको हम निकाल के फेंक देते हैं, they are of no use।
तो उसने कहा कि भाई हाँ ये कुछ घास पड़ी हुई है, कुछ स्टफ है, कुछ वीड्स है. सम कॉल दैम वीड्स, इफ यू लाइक देन अ वीड गार्डन दैट्स फ्रूट एंड वेयर आर फ्लावर्स एंड ट्रीज एंड हर्ब्स all sort, but over there weeds. I grow weeds there. Why is one green growing plant called a weed and another flower? Where is the difference? It's all life growing same as you and me. उन्होंने कहा कि तुमको वहाँ पे weed दिखते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हाँ वो weeds हैं, वो क्या है, सूखी खराब हुई जो पत्तियाँ और घास है वो हैं. बट इफ़ यू लाइक, अगर आपको पसंद है तो वो जो एक वीड है जो वहाँ पे कूड़े का ढेर लगा हुआ है वो एक वीड गार्डन भी हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग. मतलब मैंने सूखी पत्तियों का गार्डन बनाया है, वहाँ पर देखो क्या है, फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, पेड़ हैं, हर्ब्स हैं, सारी चीज़ें हैं. ऑल सॉर्ट्स आर कॉल्ड ऑल काइंड्स या टाइप्स. अलग अलग तरह के जो फूल हैं, पत्तियाँ हैं, वो सारी चीज़ें हैं मेरे गार्डन में, सब कुछ है. बट ओवर देयर, लेकिन वहाँ पे क्या है, वीड है. वो एक तरफ दिखाते हैं जहाँ पे वीड्स होता है, रबिश होता है, कूड़े का ढेर लगा होता है, ठीक है, और एक तरफ होता है जहाँ पर हरी हरी पत्तियाँ हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, फ्लावर हैं, बहुत सारे बुशेस हैं. तो वो कहते हैं कि देखो ये जो एक मेरा गार्डन है वो ग्रीन गार्डन है और एक ये गार्डन है वो वीड गार्डन है. मेरे अकॉर्डिंग वो खाली चीज़, खराब चीज़ नहीं है, डिस्कार्डेड नहीं है, वो वीड गार्डन है. मैं वहाँ पर वीड्स ग्रो करता हूँ. ग्रो का मतलब मैं फेंकता नहीं हूँ. आई डोंट डिस्कार्ड दोज ऑल डर्टी और अनयूज्ड थिंग. मैं उनको इकट्ठा करता हूँ, ग्रो करता हूँ. वाई इज वन ग्रीन, सिर्फ ग्रीन ही क्यों ग्रो करेगा? प्लांट कॉल्ड अ वीड, मतलब जो ग्रीन प्लांट है सिर्फ उनको ही क्यों ग्रो किया जाए? वो भी तो एक वीड हो सकते हैं. एंड अनदर फ्लावर, और कोई दूसरा फ्लावर. मतलब जो मैंने वीड गार्डन बनाया है अकॉर्डिंग टू मी वो भी मेरा एक गार्डन है. जो ग्रीन कलर का गार्डन है वो भी मेरा एक गार्डन है. जो ग्रीन प्लांट है, जो फ्लावर्स हैं, फिर वही को उनको ही क्यों गार्डन कहा जाए? जो वीड है हमारा, दैट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड अनदर फ्लावर. उसमें भी कोई दूसरे फ्लावर उसको भी बोल सकते हैं. हाँ, क्योंकि सूखे हुए प्लांट पड़े हैं, फ्लावर पड़े हैं, जो विदरिंग फ्लावर हैं वो पड़े हैं, विदर्ड फ्लावर. तो वो कहते हैं कि वो जो फ्लावर हैं उनको आप बोल सकते हो दे आर वीड फ्लावर, दे आर वीड प्लांट्स. वेयर इज द डिफरेंस? क्या डिफरेंस है भाई? हमने कहा एक तरफ हमारा ग्रीन प्लांट है, एक तरफ वीड प्लांट है. यही हमारी लाइफ भी है. इसी तरह से हमारी जो लाइफ है वो भी ग्रो करती है, सब सेम एज यू एंड मी, तुम्हारी तरह और मेरी तरह. अब उन्होंने जो गार्डन में जो चीज़ दिखाई, एक तरफ वो दिखा रहे हैं फ्रेशनेस, full of spirit, full of freshness, beautiful, that is liked by everyone. और एक तरफ वो क्या दिखा रहे हैं, ड्राइनेस, ठीक है, the negative side that is not liked by anyone, far most anyone. कुछ लोग हैं जो उसकी भी इंपॉर्टेंस समझते हैं. तो वो कहते हैं हमारी लाइफ भी बिल्कुल ऐसी ही ग्रो करती है, सम टाइम पॉजिटिव, सम टाइम नेगेटिव, एंड बिल्कुल तुम्हारी और मेरी जैसे. मतलब ऐसा नहीं कि किसी की लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिविटी भी आती है. लाइफ बिल्कुल वैसी ही है. और वो लाइफ को किससे कंपेयर कर रहे हैं? गार्डन से. पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी ऑफ द लाइफ इज कंपेयर्ड विद द ग्रीन प्लांट एंड द वीड गार्डन ऑफ मिस्टर लैम्स गार्डन. डेरी बोलता है वी आर नॉट द सेम, हम लोग सेम नहीं हैं. देन मिस्टर लैम्ब सेड आई एम ओल्ड, यू आर यंग, यू हैव गॉट अ बर्न्ड फेस, आई हैव गॉट अ थिन लेग. नॉट इम्पॉर्टेंट, यू आर स्टैंडिंग देयर, आई एम सिटिंग हियर, वेयर इज द डिफरेंस? उन्होंने कहा कि तुम देखो डिफरेंस है ना, मैं कैसा हूँ, मैं ओल्ड हूँ, तुम यंग हो, और तुम्हारा एक बर्न्ड फेस है, मेरा क्या है, मेरा एक थिन लेग है. Tin leg is called not made up of tin, मतलब he got one of his leg operated. तो जो tin का leg बनाया जाता है, मीन्स जब leg नहीं होता है, you must have heard about prosthetic legs, जो अलग से legs लगाए जाते हैं artificial, made up of tin. He was having one of his leg, मतलब एक leg तो उनका था, that was just all okay and all same like others, और जो एक था वो उनका tin का leg था. तो उन्होंने क्या बोला, देखो तुम्हारे पास क्या है, you have a burnt face and I have a tin leg. लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि व्हाट वी हैव लॉस्ट, क्या हमने खोया है. तुम खड़े हुए हो और मैं बैठा हूँ, क्या डिफरेंस है बताओ मुझे? कोई भी डिफरेंस नहीं है. यू आर हैम्परिंग विद वन ऑफ द डिसेबिलिटी और डिस्पैरिटी, आई एम ऑल्सो. तो वो यहाँ पर एक डिस्क्लोज कर रहे हैं. डेरी ने एक अपना सीक्रेट डिस्क्लोज किया, या जो उसको बॉदर कर रहा था, ट्रबल कर रहा था, वो उसने डिस्क्लोज किया. यहाँ पे मिस्टर लैम्ब उसको अपने ट्रबल के बारे में बताते हैं.
नाउ डेरी सेड व्हाई हैव यू गॉट अ टिन लैग, क्यों है आपका ये टिन लैग, क्या हुआ? Real one got blown off years back. Let me lamb, some kids say. Haven't you heard them? You will let me lamb. It fits. Doesn't trouble me. उन्होंने कहा कि एक जो मेरा पैर था वो कट गया या बॉम्ब ब्लास्ट में उड़ गया, आप ये बोल सकते हो कि ही वॉज देयर मीन्स ही फाउंड एन एक्सीडेंट, ही मेट विद एन एक्सीडेंट अर्लियर इन पास्ट, और उसमें बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से जो उनका एक पैर था वो कट गया था, और उसके बाद से सभी बच्चे उनको क्या बुलाते थे? लेमी लैम। लेमी आप बोल सकते हो हु वॉक्स ऑन वन फीट, ठीक है, जो इसको आप लंगड़ा बोलते हो हिंदी में, ठीक है, तो आप बोल सकते हो यहाँ पे उनको क्या बोलते थे, उनको जो वहाँ पे जितने भी लोग आते थे उनको पता था कि भाई ये जो मिस्टर लैम है, इनका जो एक लैग है वो टिन लैग बना हुआ है, तो उनको लेमी लैम बोलते थे। लैम तो उनका नाम हो गया, और लेमी मतलब हु वॉक्स ऑन वन फुट, मतलब हु इज हैविंग ओनली वन फुट। अकॉर्डिंग टू दैम वन लैग तो उनका आर्टिफिशियल था, तो वो उनको चिढ़ाते थे, टीज करते थे। तो उन्होंने कहा कि तुमने सुना होगा ये सारी चीज़ें कि बच्चे कैसे मुझे टीज करते हैं, वो मुझे लेमी लैम बुलाते हैं, एंड यू विल लेमी लैम, यानी कि तुम कौन हो? लेमी लैम। वो मुझे बोलते हैं कि यू आर लेमी लैम, बट इट फिट्स, ये ठीक ही तो बोलते हैं वो, means I have one artificial leg, one tin leg, so that's why the same thing means I have only one real leg, तो it doesn't trouble me, इससे मुझे कोई भी परेशानी नहीं होती। अब यहाँ पर लैम क्या बता रहे हैं, जब डेरी ने बोला था कि I don't want to be in the company of people, why? Because they are afraid of me, I don't like them, they don't like me। तो यहाँ पे वो है मिस्टर लैम है, वो बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है, you have to meet with the people, वो आपके पास भी आएंगे, you cannot live in this society without the meeting of the people, you have to be contacted in these type of things earlier, as well as you will contact so many people because you are living in the same society। कह रहे हैं बच्चे मुझे भी तो चिढ़ाते हैं लेकिन मुझे तो कोई ट्रबल नहीं होती है। Then Derry asked, but you can put on trouser and cover it up and no one sees, they don't have to notice and stare। लेकिन उसने कहा कि लेकिन आपके साथ है ना एक चीज़, आप ट्राउज़र पहन लो, आप पैंट पहन लो, ट्राउज़र पहन लो, नहीं दिखेगा, ठीक है, उनके पास कोई चीज़ होगी नहीं, वो नोटिस नहीं करेंगे और वो स्टेयर भी नहीं करेंगे। स्टेयर इज कॉल्ड कंटिन्यूसली लुकिंग एट समथिंग, वो आपको घूरेंगे भी नहीं, उसको नहीं देखेंगे। सम डू सम डोंट, दे गेट टायर्ड ऑफ इट, in the end there is plenty of other things to stare at like my face। मतलब कि हाँ, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, मतलब कुछ लोग नोटिस करते हैं मुझे और देखते हैं, कुछ लोग नहीं देखते हैं। उनके अब वो थक चुके हैं, बाय बिकॉज सबको पता है और इन द एंड सबको पता चल जाता है, तो वो सब लोग थक चुके हैं और उनको पता है इसी चीज़, बट बाद में एट लास्ट में दे गॉट टायर्ड, बाद में वो लोग थक जाते हैं। कितना आप किसी को चिढ़ाओगे, कितना बोलोगे, बट एट लास्ट क्या होता है, बाद में वो लोग थक जाते हैं। एंड देयर इज प्लेंटी ऑफ अदर थिंग, क्योंकि बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिनको आपको देखना है। दिस इज़ नॉट द ओनली थिंग दैट दे आर लुकिंग एट मी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तब डेरी क्या बोलता है, आयरॉनिकली डेरी इज सेइंग लाइक माई फेस, मतलब जैसे कि मेरा फेस, मतलब सब लोग इसको देखेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि मिस्टर लैम जस्ट वांटेड टू डिमिनिशेस द ट्रबल, द नेगेटिविटी दैट इज़ देयर इन डेरीज हार्ट। डेरी बोलता है बट आपके साथ एक पॉजिटिव चीज़ है कि आप अपना वट एवर इज ट्रबलिंग यू या वट एवर कैन बी नोटिस्ड बाय द अदर पीपल, यू कैन हाइड दैट, यू कैन कंसील दैट। आप ट्राउज़र पहन लोगे तो नहीं दिखेगा, बट वट अबाउट माई फेस, दैट इज़ ऑल विजिबल टू एवरी वन, वो तो सबको दिखता है। अब मिस्टर लैम बोलते हैं कि बाद में जब डेरी बोलता है कि हाँ बहुत सारी चीज़ें देखने को, जैसे मेरा फेस, तो मिस्टर लैम बोलते हैं लाइक क्रैब एपल्स ऑन द वीड्स और द स्पाइडर क्लाइंबिंग अप द सिल्कन लेडर और माई टॉल सनफ्लावर। बहुत सारी चीज़ें, अब जो मिस्टर लैम है वो अलग अलग चीज़ों के नाम बता रहे हैं। अरे बहुत सारी चीज़ें हैं देखने को, जैसे मेरे क्रैब एपल्स, जो एपल्स हैं मेरे, जो सार एपल्स हैं वो, जो मेरा वीट है, वीट गार्डन जो मैंने बनाया हुआ है वो, उसको देखेंगे। स्पाइडर क्लाइंबिंग अप टू द सिल्कन लेडर, नाउ सिल्कन लेडर आप बोल सकते हो होम ऑफ स्पाइडर या वेब, जो वो जाल बनाती है वो, यानी कि मकड़ी को चलते हुए देखेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको देख सकते हैं। द टॉल सनफ्लावर, माई टॉल सनफ्लावर, बड़े बड़े जो सनफ्लावर के फूल हैं उनके गार्डन में वो भी थे। मतलब मेरी तुम्हारे इसके अलावा, अगेन मिस्टर लेम वांट टू डाइवर्ट द माइंड और डाइवर्ट द थिंग, अगेन एंड अगेन डेरी वॉज टेकिंग ऑल द थिंग्स ऑन हिज हेड, वो अपने ऊपर ले रहे हैं, बट यहाँ पर क्या है, मिस्टर लैम उनका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।
अब डेरी बोलता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, थिंग्स यानी कि अलग अलग चीज़ें, इट्स ऑल रिलेटिव ब्यूटी एंड द बीट्स। अब मिस्टर लैम कहते हैं हाँ ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। ब्यूटी इज कॉल्ड सुंदरता, बीस्ट इज कॉल्ड एनिमल या वाइल्डनेस, जिसको सोच कर आता है कि वाइल्ड बीस्ट, ठीक है, यानी कि ब्यूटी एंड द बीस्ट दैट वाज वेरी फेमस एनिमेटेड सीरीज, यू मस्ट हैव सीन दैट, आपने देखा होगा कि ये सब चीज़ें रिलेटेड हैं, जहाँ पे ब्यूटी है वहाँ पे कुछ ना कुछ अगलीनेस या बीस्टनेस होता है। डेरी बोलता है व्हाट्स दैट सपोज टू मीन, आपका क्या मतलब है इस चीज़ से कहने का, यू टेल मी, तुम बताओ मुझे, तुमने इससे क्या समझा। मतलब ब्यूटी एंड द बीस्ट जब उन्होंने बोला तब डेरी ने कहा व्हाट डू यू वांट टू से, देन मिस्टर लैम सेड यू टेल मी। Then Derry said, you needn't think they haven't all told me that fairy stories before. Means आपको ज़रूरत नहीं है ये सोचने की कि उन्होंने मुझे ये सारी फेरी जितनी भी स्टोरी हैं वो नहीं सुनाई है। Means he has given the example of one of the fairy story Beauty and the Beast, उन्होंने एग्जाम्पल दिया, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा मत सोचो कि मैंने नहीं सुनी है। इट्स नॉट वॉट यू लुक लाइक, इट्स वॉट यू आर इनसाइड। ऐसा नहीं है कि इससे मतलब नहीं है कि आप कैसे दिखते हो, इससे ये मतलब है कि आप अंदर से कैसे हो। मतलब उस स्टोरी में क्या बताया गया था, ब्यूटी एंड द बीस्ट में देयर वाज एन एनिमल, ओके, मीन्स दैट वाज रियली, इन फैक्ट दैट वाज अ प्रिंस who because of one of the curse he turned, or he disguised, we should not say disguised, he turned into a beast, and then the spell or the curse can be broken when he was regarded as very sweet and decent prince, and when any princess used to live with him according to her consent। इस तरह की एक स्टोरी होती है, तो वहाँ पे क्या है, that princess fell in love, that princess falls in love with that beast just because of not the appearance, because of the inside beauty of that person। वो deliberately, मतलब उसको ये मिला था कि कोई अगर तुमसे प्यार करने लगेगा not because of your appearance, क्योंकि वो beast था, उसको एक wolf बनाया गया था, भेड़िए की शक्ल हो गई थी उसकी, but उसकी inside beauty को देखकर if anybody falls in love with you then the curse will be broken। तो बाद में यही होता है, one of the girl and she falls in love with him even after the appearance, even after his appearance of a wolf, ठीक है, वो उसको she falls in love and at the end the curse broken and again that wolf change into that handsome prince, वो प्रिंस में चेंज हो जाता है। तो वही कहता है मुझे पता है जो स्टोरीज में बताया गया है कि जो आप जैसे दिखते हो वो मैटर नहीं करता, आप अंदर से कैसे हो वो ज़्यादा मैटर करता है। हैंडसम इज एज हैंडसम डस, हैंडसम मीन्स जो अच्छा लगता है वो अच्छा करता भी है, ये ज़रूरी नहीं है, और जो अच्छे लोग होते हैं बाहर से भी बहुत सारे होते हैं, एंड ब्यूटीफुल दे आर फ्रॉम इनसाइड एज वेल, अंदर से भी होते हैं। Beauty loved the monstrous beast for himself, and when she kissed him, he changed into a handsome prince. Beauty loved, यहाँ पे beauty आया है उस गर्ल के लिए, जो गर्ल थी, जो शी स्टार्टेड लविंग विद दैट बीस्ट, इन लव विद दैट बीस्ट। वो कैसा था, मॉन्स्ट्रस बीस्ट, मॉन्स्ट्रस आप बोल सकते हो डरावना, डेविल, ओके, डेविल लाइक आप बोल सकते हो, जो डेविल लाइक होते हैं यानी कि राक्षस के जैसा दिखता था। इवन दैन शी फॉल्स इन लव विद हिम, एंड उसके बाद व्हेन शी किस्ड हिम, जब लास्ट में वो उसको किस करती है, ही चेंज्ड इनटू अ हैंडसम प्रिंस। वो लास्ट में मूवी के लास्ट में, एनिमेटेड सीरीज के लास्ट में व्हेन शी किस्ड हिम, तो वो किस में चेंज हो जाता है, हैंडसम प्रिंस में चेंज हो जाता है। तो वो ब्यूटी एंड द बीस्ट की स्टोरी बता रहा है कि मुझे पता है कि भाई बाहर से देखना, अंदर से देखना, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ी हुई हैं। Only he wouldn't, he have stayed a monstrous beast, I won't change। उसने कहा कि only he wouldn't, सिर्फ वो नहीं होगा, he would have stayed a monstrous beast, वो हमेशा वो ही रहेगा, monstrous beast ही रहेगा, I won't change, मैं change नहीं होगा। अब वो क्या बोल रहे हैं, ये किसके लिए बोल रहा है कि only he would, ही वुडंट, ओनली ही वुडंट, यहाँ पे ही को किसको बोल रहा है, वो अपनी नेगेटिविटी को बोल रहा है, द बर्न्ड फेस दैट ही वॉज विनिंग। उसने कहा कि वो तो एक स्टोरी थी जिसमें उसने लास्ट में वो चेंज हो जाता है मॉन्स्टर्स बीच से, वो लास्ट में एक हैंडसम प्रिंस बन जाता है, लेकिन मेरे साथ जो मॉन्स्टर है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। वो क्या है मॉन्स्टर्स, दैट एट अप माई फेस, जिसने मेरा फेस खराब कर दिया है, एंड आई एम ऑल्सो जस्ट लुकिंग लाइक दैट मॉन्स्टर्स बीस्ट एंड आई वोंट चेंज, मैं उस तरह से कभी भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे डेरी जो है वो बिल्कुल भी रेडी नहीं है गोइंग टुवर्ड्स द पॉजिटिविटी। मिस्टर लैम वॉज ट्राइंग टू ब्रिंग हिम टू द पॉजिटिव लाइफ, बट हमेशा वो जो डेरी है वो एनी हाउ ही अगैन एंड अगैन टर्न टुवर्ड्स द नेगेटिविटी। Then Mr. Lamb said, in what way? No, you won't। उन्होंने कहा कि कैसे होगे भाई चेंज तुम, no, you won't।
उन्होंने कहा कि नो, यू विल नॉट, यू आर नॉट गोइंग टू चेंज। देन एंड नो वन किस मी, नो वन विल किस मी एवर। अब यहाँ पे लैम्प ने उससे कुछ क्वेश्चन पूछा है। जब उसने बोला कि भाई मुझे वो स्टोरी पता है, तो मिस्टर लैम्प ने उससे पूछा कि भाई व्हाट डू यू थिंक इन दैट वे, तुम उस तरह से बात कर रहे हो। उन्होंने कहा कि नो 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 नो, यू विल नॉट चेंज मीन्स यू विल नॉट चेंज फ्रॉम इनसाइड। Then Derry said, and no one will kiss me ever, only my mother, and she kisses me on the other side of my face, and I don't like my mother to kiss me. She does it because she has to. Why should I like that? I don't care if nobody ever kisses me. उसने कहा कि yes, मुझे पता है कि कभी भी कोई भी मुझे किस नहीं करेगा। Like मेरी मदर है, मेरी माँ है, सिर्फ वही मुझे किस करती है, बट वो भी कहाँ, माई अदर साइड, दूसरी तरफ मुझे फेस के वो किस करती है। द फेस वेयर आई गॉट बर्न्ड, ऑन दैट बर्न साइड ऑफ माई फेस शी नेवर किसेस, वो भी मुझे दूसरी तरफ किस करती है। एंड लाइक माई मदर, और कोई भी मुझे किस नहीं करेगा। वो करती है क्यों? क्योंकि वो माँ है, उसको ऐसा करना होता है। मतलब एक माँ है, शी विल डेफिनेटली शो हर अफेक्शन एंड लव टुवर्ड्स हर चाइल्ड। वो करते हैं तो कहते हैं वो तो मुझे सिर्फ इसलिए करती हैं क्योंकि वो मेरी माँ है, उनको करना है। वाई शुड आई लाइक दैट, मुझे क्यों अच्छा लगेगा। आई डोंट केयर, मुझे इस चीज़ की कोई भी परवाह नहीं है अगर कोई भी मुझे कभी भी किस नहीं करे। अब यहाँ पे जो डेरी है, ही इज़ गेटिंग इन्वॉल्व डीपर एंड डीपर अबाउट हिज ट्रबल, कि उसको रियल ट्रबल क्या है, द थिंग्स दैट ही हैज़ नेवर शेयर्ड विद एनीवन, किसी से भी शेयर नहीं की हैं, वो चीज़ें वो मिस्टर लैम्प को बता रहा है। मिस्टर लैम्प कहते हैं बट डू यू केयर इफ यू नेवर किस दैम। अच्छा ठीक है, दूसरे तुमको नहीं करेंगे वो ठीक है, बट व्हाट अबाउट यू, डू यू हैव दिस थिंग, और डू यू हैव दिस डिज़ायर कि यू कैन नेवर किस दैम, कि तुम उनको कभी किस नहीं कर सकते। देन डेरी सेड व्हाट, देन मिस्टर लैम्प सेड गर्ल्स, प्रिटी गर्ल्स, लॉन्ग हेयर, लार्ज आइज, पीपल यू लव। उन्होंने कहा कि येस, I'm talking about the girls, pretty and beautiful girls, long hair and beautiful and large eyes, means everybody wants, they are loved, people you love, वो लोग जिनको तुम चाहते हो। Means now Mr. Lamb was taking something very different out from Derry। वो डेरी को बोलते हैं कि it's okay, you told me about the thing that you are realizing, but what about that you never think about। मतलब तुमने मुझे बताया कि ठीक है लोग तुम्हें पसंद नहीं करेंगे किस करना, बट तुम्हारे लिए क्या, डू यू वॉन्ट टू किस दैम, जिन लोगों को तुम पसंद करते हो क्या तुम करोगे। Who would let me not one। अब यहाँ पे डेरी बोलता है कि what about me means nobody will ask me, मुझसे तो कोई नहीं पूछेगा, कोई मुझे करने ही क्यों देगा, अगर मैं चाहूँगा भी तो कोई मुझे क्यों करने देगा। Who can tell, उसने कहा कि तुम नहीं बताओगे तो कौन बताएगा। I won't ever look different when I'm as old as you are, I'll look the same, I still only have a half फेस। उसने कहा कि नो, मैं कभी भी बिल्कुल अलग नहीं दिखूंगा, मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूँगा। जब मैं आपकी तरह ओल्ड हो जाऊँगा, आई विल लुक द सेम, मैं बिल्कुल वैसा ही दिखूंगा जैसे आप दिखते हो। मेरे पास क्या है, मेरे पास जो है फेस है, लेकिन वो तब भी हमेशा एक हाफ बर्न फेस ही रहेगा। तो यहाँ पे डेरी को बहुत ही वॉज डैम श्योर दैट till his old age he is going to just we can say sustain this condition and position of his face like this। वो हमेशा उसका जो फेस है वो ऐसा ही रहेगा जब वो ओल्ड हो जाएगा तब भी। So you will but the word won't, तुम वैसे ही रहोगे लेकिन वर्ड तो वैसा ही नहीं रहेगा ना। The words got a whole face and the words then to be looked at। उस वर्ड का तो पूरा फेस होगा, मतलब पूरा फेस का मतलब क्या हुआ कि तब तक तो बहुत सारी जगह है जो तुम एक्सपीरियंस कर चुके होगे, बहुत सारे लोगों से मिल चुके होगे, काफ़ी जगह घूम चुके होगे, बहुत सारी जगह अलग अलग तरह के काम कर चुके होगे। एंड द वर्ड्स देयर टू बी लुक्ड एट, बहुत सारे लोग होंगे जो उस पर देखने के लिए वहाँ पर रेडी होंगे। मतलब टिल दैन यू विल डेफिनेटली गेट सम ऑफ द प्लेस, सम ऑफ द वी कैन से ना द डेजिग्नेशन, अपना कुछ इमेज इस तरह का बना लोगे कि सब लोग देखेंगे। डू यू थिंक दिस इज द वर्ड दिस ओल्ड गार्डन, आपको क्या लगता है कि ये वर्ड है द होल फेस जो आप बोल रहे हो, द वर्ड्स गॉट अ होल फेस, जो पूरा वर्ड है उसका एक बहुत बड़ा सा फेस है। फेस का मतलब मीन्स जिससे आप आइडेंटिफाई होते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मिस्टर लैम्प कह रहे हैं कि वर्ड्स इज देयर टू बी लुक्ड एट, बहुत
बहुत सारी चीज़ें हैं इस वर्ड में देखने के लिए, और तुम पर मतलब तुम्हारे पास बहुत सारी चीज़ें जो तुम देखो, एंड दैन पीपल विल सी यू व्हेन यू गेट अ सर्टेन इमेज। तो डेरी कहता है आपके लिए क्या, आप क्या समझते हो, वर्ड क्या है, ये ओल्ड गार्डन जहाँ पे आप बैठे हुए हो, अकॉर्डिंग टू यू दिस इज अ वर्ड। When I am here, not the only one but the word as much as anywhere. जब मैं यहाँ पे होता हूँ, ये सिर्फ अकेला मैं हूँ, not the only one means not the only one, जब मैं यहाँ हूँ, मतलब जब मैं यहाँ होता हूँ ऑब्वियसली ये मेरे लिए है, लेकिन ये सिर्फ अकेला नहीं, ये तो मेरे लिए ही है। मतलब अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मैं यहीं रह सकता हूँ, मेरे लिए तो यही वर्ड है, लेकिन ये एक अकेला केवल यही एक वर्ड नहीं है। बट द वर्ड इज मच एज एनीवेयर, कहीं भी देखो आप, वर्ड तो बहुत सारा है, अलग अलग जगह है, लेकिन मैं यहाँ हूँ इसलिए मेरे लिए ही वर्ड है। डज योर लेग हर्ट यू, अब डेरी थोड़ा सा बदलता है टॉपिक, वो कहते हैं कि आपका जो पैर है कभी आपको उसमें दर्द होता है। टिन डजंट हर्ट बॉय, टिन में दर्द नहीं होता। टिन क्या है, एक मेटल है जिसका उनका लेग बना हुआ है, तो वो ये बोल रहे हैं कि भाई मेटल में कैसा दर्द, उसमें दर्द नहीं होता। व्हेन इट केम ऑफ डिड इट, कब आता है ये, कभी आया, सर्टेनली हाँ आता है, क्या, पेन, दर्द। And how and now I mean where the tin stops at the top, उसमें कि no and now, अभी मतलब मेरा मतलब है कि ये जो टिन है वो कहाँ रुकता है at the top। उसको ये नहीं पता था कि उनका जो टिन का लेग है वो पूरा है, कहाँ से स्टार्ट है, उसको ये नहीं पता था, तो वो पूछता है कि कहाँ पे रुकता है, at the top। now and then, कभी कभी, in wet weather it doesn't signify, उनका जो टिन का लेग था वो half of the leg was burnt, तो वो कहते हैं कि जो टिन का लेग है वो कहाँ तक है और उसमें दर्द कहाँ तक होता है, कभी कभी होता है, उन्होंने बताया नाउ एंड दैन इज कॉल्ड। लैम कहते हैं हाँ कभी कभी मुझे दर्द होता है जहाँ पर ये टिन रुकता है, मतलब जहाँ से टिन का लेग फिक्स किया है उन्होंने, जो उनका ये नी के पास से, नी के बाद से जो उनका लेग था, तो वो वहाँ बोलते हैं कि हाँ जब कभी बारिश का टाइम होता है, रेनी सीजन होता है, तब मुझे दर्द होता है। इट डजेंट सिग्निफाई, सिग्निफाइज कॉल, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, मतलब आई एम नॉट फीलिंग सो मच ट्रबल एंड पेन बिकॉज ऑफ माई टिन लैग। Daddy said, oh, that's something else. They all say, look at all those people who are in pain and brave and never cry and never complain and don't feel sorry for themselves. यहाँ पे this is the first positive remark that was given by डेरी, ये पहला पॉजिटिव रिमार्क है जो डेरी ने दिया है। वो क्या बोलते हैं, हाँ आपके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत दर्द में हैं, बहुत पेन में हैं, लेकिन वो कैसे हैं, वो बहुत बहादुर हैं। वो क्या नहीं करते, वो कभी भी कंप्लेंट नहीं करते, वो कभी रोते नहीं हैं, एंड कभी भी सॉरी फील नहीं करते। सॉरी फील इज कॉल्ड रिग्रेट नहीं करते, बट इज हैपेंड दे एक्सेप्टेड दैट, ठीक है, रिग्रेट नहीं करते हैं अपने लिए, किसी चीज़ के लिए। अब यहाँ पे ये जो चीज़ डेरी बोल रहा है, दैट वॉज रियली मीन्स वी कैन से दैट शुड बी इनिशिएटेड और दैट शुड बी गोज टू द कन्वर्सेशन दैट वॉज ही वॉज डूइंग विद मिस्टर लैम। मिस्टर लैम के साथ रहकर वो ये बोल रहा था, क्योंकि मिस्टर लैम ने जब ये बोला कि हाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि मेरे दर्द कब हो रहा है, क्या हो रहा है, तो डेरी कहता है हाँ बहुत सारे लोग हैं जिनको हर्ट होता है, बट वो कभी कंप्लेन नहीं करते हैं, बहुत बहादुर हैं, बहुत बहादुरी के साथ अपना दर्द झेलते हैं। आई हैवन सेंट इट, लेकिन मिस्टर लैम ने कहा नहीं, मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा। एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स ऑफ यू, वर्स ऑफ दैन यू। वर्स इज द सेकेंड डिग्री, ये आपकी सेकेंड डिग्री है, किसकी डिग्री है ये है आपकी बैड की डिग्री, ठीक है, सेकेंड डिग्री ऑफ बैड। बैड ये इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपसे भी ज़्यादा कंडीशन में, ख़राब कंडीशन में हैं, मतलब उनको, आपको तो ये यहाँ दर्द नहीं होता, बहुत सारे लोग हैं जो आपसे भी ज़्यादा ख़राब कंडीशन में हैं। थिंक यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड, आप अगर अंधे हो जाओ, और बॉर्न डेफ या बॉर्न डेफ हो जाओ, और हैव टू लिव इन द व्हील चेयर, सारा टाइम आपको व्हील चेयर में रहना पड़े, और बी डेफ्ट इन योर हेड एंड ड्रिबल। डेफ्ट इन योर हेड इज कॉल्ड, आपको कुछ मेंटल परेशानी हो जाए, आप मेंटली रिटार्डेड हो जाओ, ओके, एंड ड्रिबल इज कॉल्ड कुछ टपकना, ड्रॉप लाइक निकलना या कुछ लिक्विड निकलना, यानी कि बहुत सारे लोग होते हैं लिक्विड कम्स आउट फ्रॉम देयर माउथ बट दे आर नॉट एबल टू वाइप दैट, बहुत
मतलब अलग अलग तरह की परेशानी है। तो यहाँ पे डेरी क्या बता रहा है, डेरी इज टेलिंग अबाउट द वर्सन कंडीशन, वर्स्ट कंडीशन, ज़्यादा ख़राब कंडीशन। मतलब आपका एक टिनकल एग है, मेरा फेस जो है बर्नड है, बट बहुत सारे लोग हैं जो आपसे भी ज़्यादा बुरी दशा में हैं। कुछ लोग हैं वो अंधे हैं, कुछ लोग बॉर्न डेफ हैं, सम ऑफ द पर्सन आर लिविंग इन द व्हील चेयर एंड सम ऑफ दैम आर मेंटली रिटार्टेड, ऑलवेज द वाटर टाइप ऑफ सब्सटेंस कम्स आउट फ्रॉम देयर माउथ बट दे आर अनअवेयर अबाउट इट, दे कैन नॉट क्लीन और वाइप इट। ये सारी चीज़ें हैं, ये कंडीशन है, ये उन लोगों की हैं जो कभी भी कंप्लेंट नहीं करते हैं। दे एक्सेप्टेड देयर दिस टाइप ऑफ कंडीशंस टू लिव इन दिस वर्ल्ड एंड दे आर लिविंग इन द सेम कंडीशन। Then Mr. Lamb said, and that's all true and you know it. तो डैम ने कहा हाँ तुमको पता है ये सारी चीज़ें, तुम जानते हो, मतलब you know the positive part of this disabled word as well. According to Mr. Lamb, उनको पता है, उन्होंने कहा कि तुमको पता है। It won't make my face change. कुछ भी हो लेकिन इससे मेरा फेस तो चेंज नहीं होगा ना। Do you know one day a woman went by me in the street and I was at the bus stop and she was with another woman and she looked at me and she said, whispered, only I heard her. She said, look at that, that's a terrible thing. That's a face only a mother could love. अब उसने कहा कि कोई भी चीज़ हो, कैसा भी हो, इफ़ आई एम पॉजिटिव और नेगेटिव, बट इन सब से मेरा फेस चेंज नहीं होगा। और आपको पता है एक बार क्या हुआ, वो उसको एक इंसिडेंट बता रहा है कि एक बार मैं सड़क पे जा रहा था एंड आई वॉज एट द बस स्टॉप, मैं एक बस स्टॉप पर रुका एंड वन वुमेन वेंट बाय मी, वेंट बाय इज कॉल्ड क्रॉस्ड मी, वो उस मुझसे आके मिली, ठीक है, क्रॉस्ड मी, अचानक से वो मिल गई और उसके साथ एक दूसरी भी वुमेन थी, मतलब दो औरतें थी। उन्होंने मुझे देखा एंड मुझे सुनाई दिया, मतलब मैंने उन कुछ सुना जो उन्होंने बोला कि वो देखो कितनी टेरेबल थिंग है, इस तरह का फेस है जो सिर्फ एक माँ ही उसको पसंद कर सकती है। मीन्स दे बोथ वर टॉकिंग अबाउट माई फेस आफ्टर लुकिंग एट मी कि दिस काइंड ऑफ फेस कुड बी लव्ड बाय ओनली बाय अ मदर। तो मैंने वो सुना एंड उसके बाद उसने बताया, सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर दैट, तुमको क्या लगता है कि सारी चीज़ें जो तुम सुनते हो तुम उस पर विश्वास कर लोगे। इट वॉज क्रूअल बट दिस वॉज द ही वॉज शेयरिंग हिज एक्सपीरियंस, द बैड एक्सपीरियंस, कि उस इंसिडेंट के बाद मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। मे बी नॉट मेंट एज मच, मिस्टर लैम ने कहा बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, जस्ट समथिंग सेड बिटवीन दैम, ऐसा होगा कि उन लोगों ने अपने बीच में कुछ उन्होंने बात की हो, ये ज़्यादा चीज़ें मायने नहीं रखती। मीन्स व्हेन पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू, व्हेन दे आर मेकिंग सो मेनी statements about you, their mindset and thoughts about you, it should not bother you. ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें तुम्हारे लिए कही जा रही हैं, तुमको सारी चीज़ें सुनने की ज़रूरत नहीं है। Only I heard it, I heard. उसने कहा कि आपने नहीं सुना था, मैंने ही सुना था सिर्फ। And is that the only thing you ever heard anyone say in your life? क्या ये सिर्फ एक ही चीज़ है जो तुमने सुनी है तुम्हारी लाइफ में, जो तुम्हारे बारे में बोली गई है? We can pay attention to other things as well. Why are you taking all the things that is negative told about you and you are clinging those things in your heart and closer to you? तुम सिर्फ उन चीज़ों पे क्यों ध्यान दे रहे हो? बहुत सारी चीज़ें हैं और जो सुन सकते हो। Oh no, I have heard a lot of things. उन्होंने कहा कि क्या यही चीज़ सुनी है? तो डैडी बोलता है नहीं, मैंने बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं। So now you keep your ears shut. उन्होंने कहा कि ठीक है, अब अपने कानों को बंद कर लो। अगर बहुत सारी बातें लोग बोलते हैं, don't listen to them, अपने कानों को बंद कर लो। You are peculiar. Peculiar is called strange. आप कुछ अजीब हो। You say peculiar things, you ask questions I don't understand. आप अजीब सी बातें करते हो, strange बातें करते हो, बहुत सारे questions पूछते हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। ना वो एक बच्चा था, उसको क्या लग रहा था, whatever he was saying, he should give his consent. उनको उस बोलना चाहिए कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, ऐसा बात है। लेकिन वो जब भी कुछ इस तरह की नेगेटिव बात करता था डेरी, तो मिस्टर लैम्ब ऑलवेज ट्राई टू डाइवर्ट द थिंग, वो पॉजिटिविटी की तरफ उसको ले जाते थे, टू डाइवर्ट। एंड वो हमेशा ये बोलता था कि आप वही अजीब हो, मतलब मैं कुछ और पूछता हूँ, आप कुछ और बात करते हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आपको कुछ बोल रहा है और अपने कानों को बंद कर लूँ। तो उसके अकॉर्डिंग वो बहुत अजीब थे। I like to talk, have company, I don't have to answer the questions, you don't have to stop here at all, the gates open. उन्होंने कहा कि हाँ मुझे अच्छा लगता है बात करना, मुझे लोगों की कंपनी, उनसे मिलना जुलना पसंद है, मुझे सारे क्वेश्चंस का आंसर देना ज़रूरी नहीं है, तुम अगर यहाँ पर नहीं रुकना चाहते हो, द गेट्स आर ओपन मीन्स यू कैन गो। तो यहाँ पर मिस्टर लैम्ब थोड़े से स्टर्न हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जब डेरी, मिस्टर लैम्ब अल्टीमेटली वांटेड टू चेंज द माइंडसेट ऑफ दैट
boy who was going towards the negativity, in the dark, in the gloom, and that's why he showed some sternness. उसने कहा कि ठीक है, अगर तुमको नहीं अच्छा लगता, मैं तो ऐसा ही हूँ, हर चीज़ का आंसर देने का ज़रूरत नहीं है मुझे, अगर इफ़ यू डोंट लाइक, अगर नहीं रुकना चाहते हो तो गेट्स आर ओपन, तुम जा सकते हो. यस बट डैडी ने कहा कि हाँ लेकिन आई हैव अ हाइव ऑफ बीज बिहाइंड दोज ट्रीज ओवर देयर. फिर से मिस्टर लैम डाइवर्ट कर देते हैं उसका माइंड. वो कहते हैं देखो मेरे पास एक हाइव है, हाइव ऑफ बीज है. कहाँ पे है? ट्रीज ओवर देयर, बिहाइंड दोज ट्रीज, उन पेड़ों के पीछे जो है हाइव है. हाइव इज कॉल्ड, ये जो आप बोलते हो ना जिसको मधुमक्खी का छत्ता होता है जो बनाते हैं, कहीं भी बना लेते हैं, दीवार पे, पेड़ों पे, और दरवाजे के पीछे, बहुत सारी जगह होती, कॉर्नर में, सीलिंग पे. तो वो कहते हैं कि देखो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे हाइव ऑफ बीज है, वहाँ पे बहुत सारी मधुमक्खियों का हाइव है. सम हेयर बीज एंड दे से बीज बस. जो यहाँ पर होते हैं, जो सुनते हैं, वो क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि बीज बज. बज इज द साउंड ऑफ द बीज. इस तरह की जो साउंड होती है इसको कहते हैं बजिंग साउंड ऑफ बीज. तो वो कुछ लोग होते हैं जो यहाँ पे जो सुनते हैं, वो क्या बोलते हैं कि बीज जो है वो बज कर रही हैं, यानी कि बोल रही हैं. बट वेन यू लिसन टू द बीज फॉर अ लॉन्ग वाइल दे हम, एंड हम मीन्स sing. I hear them singing, my bees. Buzzing is a sound, जैसा बोल सकते हो, sound of the bees that is creating a kind of noise. तो आप ये बोल सकते हो वो किस चीज़ में बोल रहे हैं, वो किस फॉर्म में बोल रहे हैं, वो एक बोल रहे हैं कि नॉइस के फॉर्म में. लोग बोलते हैं हाँ मधुमक्खियों की आवाज़ आ रही है, वो भिनभिना रही हैं, वो बज़ कर रही हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी दे आर हमिंग. हमिंग इज कॉल्ड, हमिंग इज अ रिदमिक साउंड दैट सूथ्स टू योर ईयर्स. उनको लगता है कि मुझे तो अच्छा लगता है, और उनका हम जब कंटिन्यूस में सुनता रहता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि वो गाना गा रही है, मुझे तो अच्छा लगता है. एंड वो कौन गाना गा रही हैं? माई बीज. Again, see, means Mr. Lamb again took out the positivity from the negative things that are regarded or judged by other people. Means they have declared this is the humming of the bees, it is irritating, it's creating a kind of confusion, irritation in their ears. But according to Mr. Lamb, that looks or that seems like singing. ऐसा लगता है कि वो गाना गा रही हैं. But I like it here. I came in because I liked it when I looked over the wall. लेकिन मैं यहाँ पे आया क्योंकि मुझे अच्छा लगा, मैंने उस वॉल की तरफ देखा, मुझे लगा कि मुझे इस वॉल से आगे जाना चाहिए. आई लाइक द गार्डन, आई वॉन्टेड टू कम हियर एंड दैट्स वाई आई एम हियर. और इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ. इफ़ यू हैड सीन मी यू वुड नॉट हैव कम इन. अगर आपने मुझे देख लिया था, यू वुड नॉट अलाउ मी, आपको मुझे नहीं आने देना चाहिए था. डैडी ने कहा कि नो. आई एम सो सॉरी. लैम ने कहा यू वुड हैव सीन मी, यू वुड नॉट हैव कम इन. अगर तुमने मुझे देख लिया होता तो तुम नहीं आते. मतलब डैडी क्या सोच के आया था? डैडी ने सोचा ये एम्प्टी प्लेस है, अगर डैडी देख लेता कि वहाँ पे वो बैठे हुए हैं, कोई बैठा है, तो वो नहीं आता. ठीक है, तो उसने कहा कि मुझे यहाँ आना क्यों अच्छा लगा, मुझे लगा कि ये एम्प्टी प्लेस है. तो डैडी ने कहा नो. मिस्टर लैम सेड नो, it would have been a trespassing. Now trespassing is called when you are going somewhere without the permission. आप कहीं भी चले जाते हो तो वो कहते हैं कि no, it would have been a trespassing. डैडी बोलता कि no, ये तो ऐसा होता कि मैं विदाउट परमिशन आ गया. मतलब अकॉर्डिंग टू डैडी अगर मैं आपको देख लेता और उसके बाद मैं आता तो दैट वॉज रिगार्डेड एज आई एंटर्ड विदाउट परमिशन, कि मैं बिना परमिशन के आया. तो उन्होंने कहा कि दैट्स नॉट वाई. मतलब येस, नॉट वाई, क्यों नहीं. आई डोंट लाइक बींग नियर द पीपल. डैडी फिर से बोलता है मुझे लोगों के बीच रहना अच्छा नहीं लगता. व्हेन दे स्टेयर, व्हेन आई सी देम बीइंग अफ्रेड ऑफ मी. जब मैं उनको देखता हूँ, जब वो मुझे देखते हैं तो वो मुझसे डर रहे होते हैं. यू कुड लॉक योर सेल्फ अप इन द रूम एंड नेवर लीव इट. देयर वॉज अ मैन हु डिड दैट. अब उसने बताया, मिस्टर लैम बोलते हैं कि ठीक है, तो तुम एक काम करो, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता है तुम अपने आप को बंद कर लो, कमरे में बंद कर लो, लॉक लगा दो. ठीक है, इससे क्या होगा कि यू कैन नेवर बी इन द नोटिस ऑफ एनीवन. तुम कभी किसी को दिखोगे ही नहीं, है ना, और कभी भी उस रूम को छोड़ के मैं नहीं जाना. एक आदमी था जो बिल्कुल वैसा ही करता था. अब यहाँ पे मिस्टर लैम जो है वो डैडी को क्या सुना रहे हैं, एक छोटा सा इंसिडेंट सुना रहे हैं अबाउट अ मैन. उन्होंने बताया ही वॉज अफ्रेड यू सी. उन्होंने कहा कि देखो वो जो मैन था ना बिल्कुल वैसा ही, वो डरता था, बहुत डरता था, ऑफ एवरीथिंग, सारी चीज़ों से. एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में जितनी चीज़ें हैं उन सबसे वो डरता था. अ बस माइट रन हिम ओवर और अ मैन माइट बीट डेडली जर्म्स ऑन टू हिम ऑन द, और अ डोंकी माइट किक हिम टू डेथ.
or lightning might strike him down, or he might love a girl and the girl will leave him, and he might slip on a banana skin and fall, and people who saw him would laugh their hats off. So he went into this room and locked the door and got into his bed and stayed there. अब वो एक ऐसे आदमी की कहानी सुना रहे हैं, इंसिडेंट बता रहे हैं छोटा सा, कि वो बहुत डरता था, हर चीज़ से डरता था, इस दुनिया में जितनी चीज़ें हैं वो सबसे डरता था. अब वो एग्जाम्पल्स देते हैं, जैसे कि वो बाहर जाने से डरता था, उसको लगा कि मैं बाहर जाऊंगा तो एक बस आएगी, वो मुझे टक्कर मार कर चली जाएगी मेरे ऊपर से. कोई आदमी है वो मुझ पर अपने डेडली जर्म्स ब्रीथ करेगा, मीन्स जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्रीथिंग, मतलब ब्रीथिंग से ही मेरे ऊपर डेडली जर्म्स आ जाएंगे एंड आई विल डाई. कोई डोंकी हो सकता है, वो मुझे किक कर देगा, मैं मर जाऊंगा. लाइटनिंग में स्ट्राइक, बिजली आ जाएगी, उसके ऊपर गिर जाएगी, वो मर जाएगा. किसी गर्ल से इफ़ ही फॉल्स इन लव विद दैट गर्ल, वो गर्ल उसको छोड़कर चली जाएगी. देन अगर हो सकता है वो जा रहा हो, कोई केले का छिलका आ जाए, वो उस पर स्लिप हो जाए और वो गिर जाएगा. फिर पीपल उस पर, लोग देख के उसको हंसेंगे और दैन एट देयर हैट्स ऑफ, मतलब वो उसको उस पर बहुत हंसेंगे, अपना सर पकड़ पकड़ कर हंसेंगे कि वो गिर गया है, उसका मजाक बनाएंगे, उसको ह्यूमिलिएट करेंगे. सो ही वेंट इनटू हिज रूम. ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में उसने अपने बिठा ली थी, अपने रूम में चला गया और वो वहीं रुकता था, कहीं नहीं जाता था. उसने अपने आप को लॉक कर लिया था और वो सारा दिन अपने बेड पे ही रहता था. आफ्टर दैट forever, for a while, उसने कहा कि हमेशा के लिए क्या हो रहा. उन्होंने कहा कि नहीं, थोड़ी देर के लिए. then what? A picture fell off the wall on his head and killed him. उसने कहा कि कुछ नहीं, वो घर में ही था, कहीं नहीं गया. ऊपर से एक दीवार से एक पिक्चर उसके सिर पर गिरी और वो मर गया. He died. डेरी laughs a lot. उसने कहा, जब उन्होंने ये बताया और डेरी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा. मीन्स यू थिंक अबाउट अ मैन हु वाज थिंकिंग ऑफ बीइंग killed or to die by so many big excuses कि ये हो जाएगा मेरे साथ, ये हो जाएगा. तो वो चुपचाप से अपने घर में बैठा रहता था, वो कहीं नहीं जाता था. और क्या हुआ अल्टीमेटली, उसके घर में उसके सिर पे उसकी ही दीवार से एक पिक्चर गिरी और वो मर गया. तो ये डेरी को बहुत लाफिंग इंसिडेंट लगा, वो हंसने लगा. यू सी, तुमने देखा, बट यू स्टिल से पैक्यूलर थिंग. लेकिन अभी भी मैं कहूँगा कि आप बहुत पैक्यूलर बातें करते हो. पैक्यूलर टू सम, हाँ करता हूँ, लेकिन कुछ. What do you do all the day? अब डेरी उनसे फिर से कुछ अलग चीज़ पूछता है. अभी हम यहाँ पे देखें तो डेरी का थोड़ा सा मीन्स फ्रेंडली हो गया है वो मिस्टर लैम से. वो उनके बारे में उनसे क्वेश्चंस पूछ रहा है. Mr. Lamb said, sit in the sun, read the book. You thought it was an empty house, but inside it's full. Books and other things full. उन्होंने कहा कि मैं क्या करता हूँ, धूप में बैठता हूँ, किताबें पढ़ लेता हूँ. तुमको क्या लगता है कि ये खाली का हाउस है, तुम्हारे अकॉर्डिंग ही खाली है, बट ये अंदर से पूरा भरा हुआ है. थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, पूरा फुल है. बट देयर आरंट एनी कर्टन्स एट द विंडो. डैडी ने कहा लेकिन खिड़कियों पे तो कोई पर्दे हैं ही नहीं. तो जब ऐसा लगता है कि इफ़ नोबडी इज़ लिविंग और बहुत टाइम से ये घर खाली पड़ा है, पर्दे नहीं हैं, कोई भी चीज़ नहीं है, तो वो एक साइन भी होता है कि पर्दे नहीं है. उसको लगा कि कोई नहीं रहता है. कि आपने पर्दे क्यों नहीं लगा रखे? आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टन, शटिंग थिंग्स आउट, शटिंग थिंग्स इन. आई लाइक द लाइट एंड द डार्कनेस एंड द विंडोज ओपन टू हेयर द विंड. उन्होंने कहा कि नो, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ. नॉट फॉन्ड ऑफ इज कॉल्ड फॉन्ड ऑफ, आप बोल सकते हो लाइक. उन्होंने कहा कि मुझे पसंद नहीं है. आई डोंट लाइक टू कवर द विंडोज थ्रू कर्टन. शटिंग थिंग्स आउट मतलब चीज़ों को अंदर बंद करना, चीज़ों को बाहर से बंद करना मुझे पसंद नहीं है. मतलब आप जब कर्टन डाल लोगे तो अंदर की चीज़ें बाहर नहीं दिखाई देंगी, बाहर की अंदर नहीं दिख सकते. तो उन्होंने कहा कि ये मुझे पसंद नहीं है. मुझे लाइट और डार्कनेस दोनों को विंडो से आना पसंद है. Means in the morning I like when light comes through the window, and during the evening and night time when the darkness comes, I like that. And the windows open to hear the wind. और मैं विंडो खुली रखता हूँ, विंडो भी मैं हमेशा खुली रखता हूँ जिससे कि जो हवा है मैं उसको सुन सकूँ. तो यहाँ पे क्या बता रहा है, जो डेरी है उसने पूछा कि आप ऐसा क्यों रहते हो, तो उन्होंने बताया कि भाई मुझे नेचर के बीच रहना पसंद है. Daddy said, yes, I like that. When it's raining, I like to hear on the roof. मुझे अच्छा लगता है. Now, this is the first thing that Daddy was talking about. तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बोल रहा है, सबसे पहली बार वो अपने इंटरेस्ट के बारे में बोल रहा है. उसको क्या अच्छा लगता है,
लाइकनेस आप बोल सकते हो, अपनी हॉबी के बारे में बोल रहा है, उसको क्या अच्छा लगता है। उसने कहा कि मुझे बारिश की जो बूंदें हैं जब वो रूफ पर, छत पर गिरती हैं, उनको सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो यू आर नॉट लॉस्ट, आर यू नॉट ऑल टुगेदर, यू डू हियर थिंग्स, यू लिसन। उन्होंने कहा कि तुम पूरी तरह से नहीं खो गए हो, तुम पूरी तरह से दुनिया में जो है बहुत सारी चीज़ें हैं उन सब में गुम नहीं हो गए हो, अच्छा लगता है, तुम सुनते हो, बहुत सारी सुंदर और प्यारी चीज़ें हैं जो तुमको सुनना अच्छा लगता है। दे टॉक अबाउट मी, टेरी फिर से वही बातें करने लगता है कि वो लोग मेरे बारे में बात करते हैं। डोंट स्टेयर व्हेन आई एम नॉट देयर, दे यहाँ पे बात कर रहा है वो पीपल के बारे में, लोगों के बारे में बात कर रहा है, पीपल ऑफ हिज विसिनिटी। और ये जो इंसिडेंट्स है वो बता रहा है अपने विसिनिटी के बारे में। विसिनिटी इज कॉल्ड, आप बोल सकते हो, जो उसका पड़ोस है, यानी कि जहाँ पे वो रहता है वो उसके बारे में बात कर रहा है। वो कहता है कि डाउन स्टेयर यानी कि सीढ़ियों के नीचे, व्हेन आई एम नॉट देयर, जब मैं नहीं होता हूँ, व्हाट्स ऑल ही एवर डू, मीन्स व्हाट विल ही एवर डू, कोई भी कभी भी कुछ भी करेगा। व्हाट्स गोइंग ऑन टू हैपन टू हिम व्हेन वी हैव गॉन, मीन्स उसके साथ क्या कब हो जाए, व्हेन वी हैव गॉन, जब हम जा चुके हों। हाउ एवर विल ही गेट ऑन दिस वर्ड, ये सारी क्या चीज़ बता रहा है, द क्वेश्चंस दैट आर पुट अप बाय द पीपल ऑफ हिज विसिनिटी। उसने कहा कि ये सारे क्वेश्चंस होते हैं जो लोग मेरे बारे में बोलते हैं। उसने कहा कि डाउन स्टेयर व्हेन आई एम नॉट देयर, जब मैं नहीं होता हूँ तब वो बातें करते हैं। क्या बातें करते हैं? वट ही विल एवर डू, क्या करेगा वो आगे जाके। व्हाट्स गोइंग ऑन टू हैपन टू हिम व्हेन वी आर गॉन, जब हम सब लोग चले जाएंगे तब वो क्या करेगा। तो यहाँ पर अगर हम बोल सकते हैं तो यहाँ पे कौन है, फैमिली मेम्बर्स भी आप बोल सकते हो। वो अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि अभी वो चले जाएंगे तब मैं क्या करूँगा, मतलब ही इज़ लिविंग विद दैम, ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ हिम, वो उसका ध्यान रख रहे हैं। तो वे कहते हैं जब हम चले जाएंगे तो इसका क्या होगा। हाउ एवर विल ही गेट ऑन इन हिज वर्ड, मतलब इस वर्ड में, इस दुनिया में वो अकेले कैसे रहेगा, कैसे काम चलाएगा। लुकिंग लाइक दैट, मतलब ये सारी चीज़ें देखकर, विद दैट ऑन हिज फेस, दैट्स व्हाट दे से, उसका फेस देखने के बाद ये सारी चीज़ें हैं वो सारे लोग बोलते हैं। अब डेरी एक एक करके सारी चीज़ें, मीन्स ही इज़ जस्ट पोरिंग आउट ऑल द वरीज, ऑल द सॉरोज, ऑल द ट्रबल्स टू मिस्टर लैम। वो एक एक करके सारे जो भी इंसिडेंट्स उसको याद आते जा रहे हैं वो सब बता रहा है। मिस्टर लैम कहते हैं, लॉर्ड बॉय, यू हैव गॉट 2 arms, 2 legs and eyes and ears, you have got a tongue and a brain, you will get on the way you want like all the rest, and if you chose and set your mind to it, you could get on better than all the rest. उसने कहा कि हे भगवान, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ओ गॉड, हे भगवान, तो वो ये भी बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आईज हैं, 2 ईयर्स हैं, एक टंग है तुम्हारे पास खुद का ब्रेन है, तुम जो चाहो वो कर सकते हो, तुम जिस रास्ते पर जाना चाहो जा सकते हो। लाइक ऑल द रेस्ट, मतलब रेस्ट इज कॉल्ड यहाँ पे पीपल के लिए आया है, जैसे सारे लोग जाते हैं उस पर तुम जा सकते हो। एंड इफ़ यू चोज, और अगर तुम चुनना चाहो, अगर तुमने अपना माइंड सेट कर लिया तो तुम उनसे भी अच्छा कर सकते हो, उन सारे लोगों से भी अच्छा कर सकते हो, उन सारे लोगों से अच्छी जगह जा सकते हो जहाँ पर वो लोग आज हैं। इफ़ यू आर यूजिंग ऑल योर दीज थिंग्स दैट आर बेस्टोड ऑन यू बाय गॉड, इन सारी, सिर्फ एक चीज़ को तुमने पकड़ के रखा है, बट और चीज़ों को अगर तुम यूज़ करोगे तो तुम उनसे बहुत अच्छा कर सकते हो। डेरी ने कहा, हाउ, सेम वे एज आई डू, बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैं करता हूँ। डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, डेरी ने पूछा कि आपके कोई फ्रेंड है। हंड्रेड्स, बहुत सारे। बट यू लिव बाय योरसेल्फ इन दैट हाउस, इट्स अ बिग हाउस टू, लेकिन आपने कहा आप अकेले रहते हो, ये तो बहुत बड़ा घर है। Friends everywhere, people come in, everybody knows me, the gate's always open, they come and sit here and in front of the fire in winter. Kids come for the apples and pears and for toffee. I'll make toffee with honey. Anybody comes, so have you. उन्होंने कहा कि भाई आते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, सब मेरे फ्रेंड हैं, सारे चारों तरफ अगर देखा जाए तो फ्रेंड है मेरे, सभी लोग मेरे फ्रेंड हैं, मेरे गेट हमेशा खुले रहते हैं जो गार्डन का है, बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे बैठते हैं। जब सर्दियाँ होती हैं तो फायर जब मैं जला लेता हूँ, बोन फायर, उसके पास आकर बैठते हैं। जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं वो क्या है, जो बच्चे हैं, ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो मेरे एप्पल्स के लिए, पेयर्स के लिए आते हैं, मैं उनको टॉफ़ी भी देता हूँ, और ये जो टॉफ़ी है मैं खुद बनाता हूँ थ्रू हनी।
ठीक है, विद हनी, मैं हनी से टॉफ़ी बनाता हूँ. एनीबडी कैन कम सो यू मीन्स ऑल आर अलाउड एंड दैट्स वाई यू आर हियर. तो यहाँ पर मिस्टर लैम का जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड है मीन्स ही वॉज शेयरिंग दैट ही इज़ नॉट हैविंग इवन वन और वेरी इंटीमेट और बेस्ट फ्रेंड. जो भी उसके घर में आते हैं, जो भी उसके गार्डन में आते हैं, जो मिस्टर लैम है, वो सब उन सबको एज अ फ्रेंड रिगार्ड करते हैं. तो वो ये बोलते हैं कि मैं उन सबको एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करता हूँ. Derry said, but I'm not a friend. Certainly you are. So far as I am concerned, what have you done to make me think you are not? उसने कहा कि लेकिन मैं आपका फ्रेंड नहीं हूँ. तो मिस्टर लैम ने कहा सर्टेनली, डेफिनेटली यू आर, बिल्कुल तुम मेरे फ्रेंड हो. एंड आई एम कंसर्न, सी मैं तुम्हारे लिए चिंता कर रहा हूँ. कंसर्न इज कॉल्ड वरीड अबाउट यू, राइट. तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए वरी कर रहा हूँ, देखो मैं कितनी सारी चीज़ें तुमको बता रहा हूँ. मीन्स दैट आई एम रिगार्डिंग यू एज माई फ्रेंड. तुमने इतना टाइम जो आया है मेरे साथ एंड आस्क मी थिंक यू आर नॉट. तुमको ऐसा क्यों लगता है कि तुम मेरे फ्रेंड नहीं हो या मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं हूँ. यू डोंट नो मी, यू डोंट नो वेयर आई कम फ्रॉम और इवन वॉट माई नेम इज़. आपको कुछ नहीं पता है. मुझे ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मुझे लगता है कि आपको तो कुछ पता ही नहीं है मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ रहता हूँ. यू डोंट नो एनीथिंग. फ्रेंड्स ऐसे नहीं होते. Mr. Lamb said, why should that signify? Do I have to write all your particulars down and put them in a filling box before you can be a friend? उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ों का क्या इंपॉर्टेंस है भाई. Signify is called importance. तुमको क्या लगता है कि फ्रेंड बनने के लिए सबसे पहले मैं तुम्हारी जो पर्टिकुलर्स हैं, पर्टिकुलर्स इज कॉल्ड तुम्हारी जो आइडेंटिटी है, मैं सारी चीज़ें उनको लिखूंगा और एक बॉक्स में फिल करूंगा तभी हम लोग फ्रेंड बन सकते हैं क्या? दिस इज़ नॉट नेसेसरी. मतलब जो बिकम अ फ्रेंड, पहले तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, कहाँ से आए हो, क्या करते हो, ये सारी चीज़ें लिखना ज़रूरी थोड़ी है. आई सपोज नॉट, नो, मुझे लगता है ऐसा बट नहीं. यू कुड टेल मी योर नेम इफ़ यू चोज एंड नॉट इफ़ यू डेंट. उन्होंने कहा कि अगर तुम चाहो तो मुझे नाम अपना बता सकते हो, लेकिन अगर तुम ना चाहो तो मत बताओ. Derry, only it's Derek, but I hate that. Terry, if I'm your friend, you don't have to be mine. I chose that. उन्होंने कहा कि मेरा नाम डेरी है बट वैसे डेरिक है. ओनली इट्स डेरिक बट आई डोंट लाइक, मुझे अच्छा नहीं लगता. आई डिसलाइक दिस नेम. यानी कि डेरी का जो असली नाम था वो क्या था, डेरिक था, लेकिन उसे नहीं अच्छा लगता था. उन्होंने कहा कि भाई अगर आप मेरे फ्रेंड हो तो आप मुझे डेरी ही बुलाओ. आई चोज दैट, क्योंकि यही नाम मैंने चुना है, मुझे ये नाम अच्छा लगता है. Mr. Lamb said, certainly I might never come here again. You might never see me again. And then I couldn't still be a friend. फिर डेरी कहता है कि हो सकता है आप मुझे यहाँ पे दोबारा कभी नहीं देखो, मैं यहाँ पे कभी नहीं आऊँगा दोबारा. And I couldn't still be a friend. और मैं ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपका फ्रेंड नहीं रहूँ. Then Mr. Lamb said, why not? क्यों नहीं? How could I? You pass people in the street and you might even speak to them, but you never see them again. It doesn't mean they are your friends. अब यहाँ पर डेरी को पता चल गया. डेरी यहाँ पे थोड़ी सी लॉजिकल बात करता है. लॉजिकल बात मतलब ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बाय मिस्टर लैम. उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे कोई भी आता है तो डेरी बोलता है कि आप तो किसी से भी बात करते हो, रोड पे कोई भी चल रहा हो, कोई भी आपके गार्डन में आ जाए, आप सबको फ्रेंड बना लेते हो. ये ज़रूरी तो नहीं है कि whoever has come once he or she will come again. अगर वो दोबारा नहीं आता है तो आप सारे लोगों को ऐसे कैसे फ्रेंड बना सकते हो? इसका मतलब ये थोड़ी है कि जिससे हम बात करें, एक बार मिल लें तो वो हमारा फ्रेंड हो जाएगा. Derry was saying, doesn't mean they are enemies either, does it? उन्होंने कहा ठीक है, अगर फ्रेंड नहीं है तो वो हमारे एनिमी भी तो नहीं होते हैं क्या? No, they are just nothing people, that's all. उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ भी नहीं, वो सिर्फ लोग हैं, that's all. People are never just nothing, never. उन्होंने कहा कि लोग सिर्फ just nothing नहीं होते हैं, never. मतलब उसके अकॉर्डिंग कोई भी पीपल है जिसको आप नहीं जानते हो, कोई भी पर्सन है, बट वो सिर्फ नथिंग नहीं हो सकता है. मीन्स नीदर योर एनिमी नॉर योर फ्रेंड, बट वो ही इज़ अ पर्सन एज वेल. नाउ डेरी सैड, देर आर सम पीपल आई हेट. उसने कहा कि कुछ लोग हैं जिनसे मैं हेट करता हूँ. नाउ इफ वी सी डेरी अगेन एंड अगेन कमिंग एंड वी कैन सी लैंडिंग ऑन दिस थिंग. वो बार बार यही बोल रहा है कि मुझे लोगों से मिलना पसंद नहीं है, लोग मुझे पसंद नहीं करते, मैं उन लोगों से नफरत करता हूँ. काफ़ी बार उसने ये बोला है. अगेन ही वॉज सेइंग कि मुझे नहीं अच्छे लगते थोड़े लोग, आई हेट दैम. दैट्स डू यू मोर हार्म दैन एनी बॉटल ऑफ द एसिड. सो दैट डिड यू डू, यानी कि तुम क्या कर रहे हो, यू आर हार्मिंग योर सेल्फ. जितना उस एसिड बॉटल ने तुमको हार्म किया है, तुम उससे ज़्यादा खुद को हार्म कर रहे हो. एसिड ओनली बर्न्स योर फेस ओनली
देन उन्होंने कहा कि एसिड ने सिर्फ तुम्हारा फेस जलाया है, तभी डेरी उनकी बात बीच में काटता है। उसने कहा कि ओनली फेस, मतलब वो बोलना चाह रहा है सिर्फ फेस जलाया है मेरा। Like a bomb only blew up my legs, there is worse thing can happen, you can burn yourself inside। कि जैसे कि बॉम्ब है, उसमें सिर्फ मेरा एक जो लेग था वो कटा था, बट काफ़ी बुरी चीज़ें भी हो सकती थी। वर्स इज कॉल्ड ज़्यादा बुरी चीज़ें भी हो सकती थी। यू कैन बर्न योर सेल्फ अवे इनसाइड, मतलब तुम अंदर से भी जल सकते थे। यानी कि उन्होंने कहा कि एसिड ने तुम्हें बाहर की स्किन को जलाया है, एसिड कैन गो इनसाइड एज वेल, तुम वहाँ से भी जल सकते थे। मतलब मिस्टर लैम ने कहा कि ज़्यादा बुरा नहीं हुआ, जो बुरा हुआ है उसमें कुछ अच्छा सोचो कि इससे भी बुरा हो सकता था। आफ्टर आई हैड कम होम वन पर्सन सैड ही हैड बीन बेटर ऑफ स्टॉपिंग इन देयर। जब मैं घर आया था तो एक पर्सन ने बोला, डेरी ने बताया कि इसके लिए अच्छा है कि घर में ही रहे, इन द हॉस्पिटल, और वो कहाँ है, अंदर ही रहे। मतलब बेटर इज स्टॉपिंग इन देयर, कहाँ पे रहे, हॉस्पिटल में। किसी एक पर्सन ने बोला था कि जिससे वो नफरत करता था, उसने बताया ना कि आई हेट सम पीपल, तो उनमें से एक ने बोला था कि इसके लिए अच्छा है कि हॉस्पिटल में रहे, ही वुड बी बेटर ऑफ विद अदर्स लाइक हिमसेल्फ। शी थिंक्स ब्लाइंड पीपल ओनली ऑट टू बी विद अदर्स ब्लाइंड पीपल एंड इडियट बॉयज विद इडियट बॉयज। शी थिंक्स, नाउ यहाँ पे जिसके बारे में भी वो बात कर रहा है, दैट मस्ट बी अ लेडी, ओके। तो किसी फीमेल के बारे में बात कर रहा है कि वो मेरे लिए ऐसा बोल रही थी कि इसके लिए तो अच्छा है कि हॉस्पिटल में रहे। उसके अकॉर्डिंग वो क्या सोचती है कि जो अंधे लोग हैं ना उनको अंधों के साथ रहना चाहिए, जो इडियट्स हैं उनको इडियट्स के साथ रहना चाहिए। मीन्स दीज आर द थिंकिंग ऑफ द पीपल दैट डेरी वॉज पोरिंग आउट। उसको जो भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम अकॉर्डिंग टू दिस डेरी दैट ही वॉज शेयरिंग ऑल द थिंग्स फर्स्ट टाइम टू एनी स्ट्रेंजर। वो किसी स्ट्रेंजर को सारी चीज़ें बता रहा है। मिस्टर लैम सेड इन पीपल विद नो लेग्स ऑल टुगेदर, और वो लोग जो जिनके पास लेग है ही नहीं ऑल टुगेदर, दैट्स राइट। और उन्होंने कहा कि हाँ वो बिल्कुल सही है। मतलब डेरी पहली बार यहाँ पर जो मिस्टर लैम है वो उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो उन जैसे लोग होते हैं उनके अकॉर्डिंग मुझे हॉस्पिटल में रहना चाहिए, अंधों लोगों को अंधे के साथ रहना चाहिए, जिनका जो इडियट्स हैं बेवकूफ़ हैं उनको उनके साथ रहना चाहिए। देन मिस्टर लैम सेड हाँ एंड आर पीपल विद नो लेग्स ऑल टुगेदर, मतलब जिनके पैर नहीं है उनको सबको साथ साथ रहना चाहिए। मिस्टर लैम ने बोला, देन डेरी said yes yes right right what kind of word would that be। मिस्टर लैम ने कहा तो ऐसा कैसा वर्ड हो जाएगा, अगर इस तरह का वर्ड हो तो वो क्या बोला जाएगा। at least there had nobody to stare at you because you weren't like that। at least इतना तो होगा कि जहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं हो जो आपकी तरह नहीं दिखता। मीन्स they will not देन स्टेयर ओनली एट यू, सिर्फ आपको वो लोग नहीं घूरेंगे। यहाँ पे स्टेयर का मतलब है लुकिंग एट यू, गेजिंग कंटिन्यूसली, घूरना। सब आपकी तरह होंगे तो आपको कोई क्यों घूरेगा। मीन्स एवरीबडी इज हैविंग द सेम थिंग। देन सो यू थिंक, मिस्टर लैम बोलते हैं, सो यू थिंक यू आर जस्ट द सेम एज ऑल द अदर पीपल विद बर्न्ड फेसेस जस्ट बाय वॉट यू लुक लाइक। everything different, everything is same but everything is different itself। तो कहा कि तुमको यही लगता है कि तुमको भी उनके साथ होना चाहिए जिनके सबके बर्न्ड फेस हैं। मतलब if I keep your thing at this place then according to you you should also live with all the people who are having disfigured face या जिनका burnt face है। just by what you look like, सिर्फ इस वजह से कि तुम इस तरह के दिखते हो, तो फिर वो यही चीज़ बोलते हैं हर चीज़ अलग है, हर चीज़ सेम है, लेकिन हर चीज़ डिफरेंट है अलग अपने आप से। इट सेल्फ इज कॉल्ड, हर चीज़ अलग है किससे, दूसरे से। हर चीज़ सेम है, कहीं ना कहीं कोई सिमिलैरिटी है, बट फिर भी हर चीज़ अपनी तरह से दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, सब लोग सेम होते हैं। मतलब अगर उनका कहने का मतलब था अगर मेरा तिनका लेग है किसी और का तिनका लेग होगा, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि दैट पर्सन वाज आल्सो हैविंग द काइंड ऑफ परसेप्शन आई एम हैविंग टू लुक टुवर्ड्स द थिंग्स। मेरा जैसा थॉट, मेरी जैसे सोच, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इफ़ यू आर हैविंग अ बर्न्ड फेस, यू आर लिविंग विद अनदर पर्सन हु इज़ ऑल्सो हैविंग द बर्न्ड फेस, बट तुम दोनों फिर भी अलग रहोगे। तुम दोनों डिफरेंट हो, अलग अलग हो। सेम क्या है कि यू बोथ आर हैविंग बर्न्ड फेस, बट फिर भी तुम अपने आप में बहुत अलग हो। तो यहाँ पे लैम थोड़ी सी फिलोसफिकल बातें कर रहे हैं, डीप बातें कर रहे हैं टू मेक हिम अंडरस्टैंड, दैट्स इट। एंड दीज ऑल एफर्ट्स आर जस्ट डाइवर्टिंग हिम टुवर्ड्स द पॉजिटिविटी। अब डेरी कहता है हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट, आप ये सारी चीज़ें कैसे करते हो। वॉचिंग, लिसनिंग एंड थिंकिंग। मिस्टर लैम कहते हैं मैं देखता हूँ, सुनता हूँ और सोचता हूँ।
I would like a place like this. A garden, I would like a house with no curtain. अब डैरी भी बोलता है मुझे अच्छा लगता है. अब हम यहाँ अगर बोलें तो ये डैरी ने क्या बोला है, ये अपना क्या बोला है, उसने सेकंड इंटरेस्ट बोला है. मैं ऐसे लिख देती हूँ, सेकंड इंटरेस्ट. पहला उसने क्या बोला था, उसको क्या अच्छा लगता था, ही लाइक्स द पिटर पैटर साउंड ऑफ द रेनिंग ड्रॉप्स. उसको अच्छा लगता था जब बारिश की बूंदें पड़ती थी. दूसरी चीज़ उसने ये बोला, मुझे अच्छा लगता है ऐसा गार्डन, एक घर जिसमें कर्टेन नहीं हो. द गेट्स ऑलवेज ओपन. मिस्टर लैम फिर से बोलते हैं कि ये गेट हमेशा खुले हैं, तुम कभी भी आ सकते हो. बट दैट इजंट माइन, लेकिन दिस इजंट माइन, ये मेरा नहीं है. देन लैम कहते हैं एवरीथिंग योर्स इफ यू वांट इट, व्हाट्स माइन इज एनीबॉडीज. उसने कहा कि नहीं, सारी चीज़ तुम्हारी है, जो मेरा है वो सब तुम्हारा है. यहाँ पे मिस्टर लैम हैज़ जस्ट क्रॉस्ड द थिंग्स. इफ़ वी गो टू द लिटरल मीनिंग, अगर वो छोटा सा बच्चा है, वो तो बच्चा ही है, 14 ईयर्स का बॉय है, तो वो सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा रिलाई करेगा. और मिस्टर लैम बहुत ओल्ड एज के हैं. ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा एग्जिगरेटिंग कर रहे हैं, ही इज़ बीटिंग द बोस्ट, कुछ फेंक रहे हैं, ऐसा नहीं है. वो भी बिल्कुल अपनी कंसिडरेट एक्सपीरियंस्ड लाइफ से ही बोल रहे हैं, जो भी उन्होंने किया. उन्होंने कहा कि जो मेरा है वो तुम्हारा है, किसी का भी है. मेरा और तुम्हारा क्या है, जो मेरा है, ईच एंड एवरीथिंग इज योर्स इज वेल. डैरी कहता है सो आई कुड कम हियर अगैन इवन इफ यू वर आउट, आई कुड कम हियर. तो वो डैरी कहता है क्या मैं यहाँ दोबारा आ सकता हूँ अगर आप नहीं हो तो भी. सर्टेनली यू माइट फाइंड अदर्स हियर ऑफ कोर्स. ओह, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल आओ, तुमको मैं नहीं तो यहाँ पे कुछ और कोई और मिल जाएगा, कोई लोग आते रहते हैं यहाँ पर. देन मिस्टर लैम कहते हैं वेल दैट्स नीडंट स्टॉप यू, यू नीडंट माइंड. कोई भी तुमको नहीं रोकेगा और तुमको बिल्कुल भी माइंड करने की या सोचने की ज़रूरत नहीं है. Whenever you want, you can come here. It would stop them. It would stop them, and they would mind me. When they saw me here, they look at my face and run. उसने कहा कि no, it would stop them. क्या? My arrival. यहाँ पे it would stop मतलब यहाँ पे उसने कहा है कि अगर मैं यहाँ पर आऊँगा तो वो लोग यहाँ से क्या होगा, वो लोग डर जाएंगे मेरा चेहरा देखकर और उन लोगों को बुरा लगेगा. मतलब आप हो यहाँ पर, लेकिन अगर आपके एब्सेंस में मैं आता हूँ, इफ़ एनीबडी एल्स वुड बी हियर, तो दे वुड माइंड, दे वुड लुक एट माई फेस एंड दे वुड गेट अफ्रेड, और वो वहाँ से भाग जाएंगे. देन मिस्टर लैम कहते हैं दे माइट, हो सकता है, बट दे माइट नॉट, ऐसा भी हो सकता है वो नहीं जाएं, वो भाग भी सकते हैं, नहीं भी भाग सकते. यू वुड हैव टू टेक द रिस्क, सो वुड दे. उन्होंने कहा कि तुमको एक रिस्क लेना ही पड़ेगा और उनको भी. मतलब रिस्क का मतलब तुमको ट्राई करना पड़ेगा कि मेरी एब्सेंस में आते हो तो ऐसा होता है या नहीं. नो यू वुड, उसने कहा कि नहीं तुम. You might have me and lose all your other friends. उसने कहा कि नो, अगर हो सकता है कि आप मुझे ले लो लेकिन सारे फ्रेंड्स को खो दो. मतलब डैडी का कहने का मतलब है कि इफ़ आई वुड बी योर फ्रेंड मे बी यू वुड लूज ऑल योर फ्रेंड. क्योंकि मैं आपका फ्रेंड हूँ तो कोई भी आपका फ्रेंड बनने का नहीं चाहेगा. Because nobody wants to stay near me if they can help it. उन्होंने कहा कि क्योंकि मेरे पास कोई भी नहीं रहना चाहता है, मेरा फेस देखकर सब डर जाते हैं, सब भाग जाते हैं, तो अगर मैं जिसके साथ रहूँगा तो वो उसके साथ भी नहीं रहेंगे. आई हैव नॉट मूव्ड. उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं यहाँ से हिलूँगा, मतलब मैं तो नहीं भागूंगा, मैं तो यहीं रहूँगा. When I go down the street, the kids shout, "Lemmy lamb," but they still come into my garden, into my house. It's a game. They aren't afraid of me. Why should they be? Because I'm not afraid of them. That's why not. अब लैम बोलते हैं जब भी मैं जाता हूँ रोड पर, यानी कि मैं अपने घर से बाहर निकल के जाता हूँ, तो किड्स स्टार्टेड शाउटिंग. शाउटिंग इज कॉल्ड स्पीकिंग इन लाउड वॉइस. वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं लैम्बी लैम, मुझे टीज करते हैं. और फिर भी वही बच्चे मेरे गार्डन में आते हैं जो मुझे टीज करते हैं, फिर वो मेरे गार्डन में भी आते हैं, मेरे घर में भी आते हैं. ये एक गेम के जैसा है. मैं जब बाहर जाऊंगा वो मुझे चिढ़ाएंगे, लेकिन वो मेरे घर भी आएंगे, मैं उनको टॉफ़ीज़ भी देता हूँ. मीन्स वो मुझसे नहीं डरते हैं, तो मैं क्यों उनसे डरूं? बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ दैम. मैं उनसे नहीं डरता है, दैट्स वाई नॉट. और इसीलिए क्योंकि वो भी मुझसे नहीं डरते हैं, वो सिर्फ मुझे टीज करते हैं. डैरी कहता है डिड यू गेट योर लेग ब्लोन ऑफ इन द वॉर. अब डैरी ने फिर से उनसे एक क्वेश्चन पूछा. नाउ डैरी स्टार्टिंग डाइवर्टिंग द माइंड. उन्होंने कहा कि कैसे हो गया, आपका जो लेग था क्या वो वॉर में कट गया था? सर्टेनली. मास्टर लैम ने कहा कि हाँ बिल्कुल. हाउ विल यू क्लाइम ऑन अ लेडर एंड गेट द क्रैब एपल्स डाउन देन. उन्होंने कहा कि फिर आप कैसे चढ़ोगे भाई, ऊपर सीढ़ी पे कैसे चढ़ोगे, क्रैब एपल्स को नीचे कैसे उतारोगे? ओह देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव लर्न टू डू एंड प्लेंटी ऑफ द टाइम फॉर इट. ईयर्स आई टेक टू स्टडी.
उसने जब मिस्टर लैम कहते हैं भाई बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं करता हूँ, मैंने सीखी हैं, खुद सीखी हैं बहुत सालों से, मीन्स plenty of the time is called a lot of time for it, मतलब मैंने बहुत टाइम लगाया है, बहुत प्रैक्टिस की है और बहुत सालों की मेहनत से मुझे आ गया है। I take it steady, steady is called बोल सकते हो still, still बोल सकते हो, permanent बोल सकते हो, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि वो मिस्टर लैम बोल रहे हैं कि भाई ये चीज़ जो है मैंने काफ़ी प्रैक्टिस से किया है, क्योंकि मेरा 10 का लेग है, फिर भी मैं धीरे 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 सीढ़ी चढ़ के क्रैब एप्पल्स तोड़ लेता हूँ, काफ़ी टाइम मुझे लगा है, लेकिन अब ये स्टिल है, अब ये परमानेंट है, आई कैन डू। इफ़ यू फेल एंड ब्रोक योर नेक, you could lie on the grass and die if you were on your own, I could। उसने कहा कि कभी हो सकता है आप गिर जाओ, आपकी गर्दन में गर्दन टूट जाए, आप ग्रास पे घास पे गिर जाओ, आप मर जाओ, एंड इफ़ यू वर ऑन योर ओन, मतलब आपके पास कोई भी नहीं होगा, ओनली यू विल बी देयर, आई कुड। उसने कहा कि नो, मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे डेरी जो है वो बता रहा है पॉसिबिलिटी कि वो अकेले काम कैसे करते हैं ये सारा। तो जो मिस्टर लैम है वो बता रहे हैं नहीं मुझे प्रैक्टिस है, काफ़ी टाइम हुआ है मुझे। यू सेड आई कुड हेल्प यू, डेरी ने कहा कि आपने कहा मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, इफ़ यू वॉन्ट। मिस्टर लैम आस्क्ड बट माई मदर want to know where I am। उसने कहा कि लेकिन मुझे मेरी मदर को अभी चाहिए कि मैं कहाँ हूँ। मदर माई मदर विल want to know, वो जानना चाहेगी कि मैं कहाँ हूँ। It's 3 miles from across the field, some 14 but they still want to know where I am। उसने कहा कि 3 मील दूर है मेरा घर, वो बता रहा है across the field, यानी कि जो फील्ड है उसके across, उसके पार है, दूसरी तरफ है मेरा घर। मैं 14 साल का हो गया हूँ, लेकिन फिर भी उनको यही लगता है कि कहीं जहाँ भी मैं जाऊँ उनको पता होना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ। पीपल वरी, मिस्टर लैम ने कहा लोग करते हैं चिंता। पीपल फस, उसने कहा कि लोग चिंता नहीं करते हैं, वो फस करते हैं। फस का आप बोल सकते हो दे गेट एंग्री और शो अनॉयंस, ठीक है, शो अनॉयंस मतलब उसके अकॉर्डिंग वो फस नहीं करते हैं, वो ना गुस्सा करते हैं, अपना गुस्सा दिखाते हैं। गो बैक एंड टेल दैम, मिस्टर लैम ने कहा ठीक है तुम बता दो उन्हें तुम कहाँ हो। इट्स 3 miles, उसने कहा बहुत दूर है, 3 मील। इट्स फाइन इवनिंग, यू गॉट रिलैक्स, उसने कहा कि अपने पैरों से चले जाओ, अच्छी शाम है, चले जाओगे एंड वापस आ जाओगे। वंस आई गॉट होम दे वुड नेवर लेट मी कम बैक, एक बार मैं अगर घर चला गया तो वो मुझे कभी वापस नहीं आने देंगे। Once you got home, you would never let yourself come back, एक बार तुम चले गए तो तुम भी नहीं आने दोगे अपने आप को वापस। You don't know what I could do, तुमको नहीं पता मैं क्या कर सकता हूँ। No, only you know that, तब उन्होंने कहा कि हाँ नहीं, तो सिर्फ तुमको पता है। If I chose, अगर मैं चाहूँ तो, डैडी ने कहा। लैम ने कहा if you chose, I don't know everything boy, I can't tell you what to do। इफ़ यू चूज मतलब जब तुम चुनोगे, आई डोंट नो, फिर तो मुझे नहीं पता, आई कांट टेल व्हाट यू डू, मुझे नहीं पता, मुझे क्या पता कि तुम क्या चूज़ करोगे। तो यहाँ पे बात हो रही है कि अगर डेरी घर वापस जाएगा तो उसके घर वाले नहीं आने देंगे, और मिस्टर लैम कहते हैं कि नो, यू योर सेल्फ वुड नॉट कम बैक, तुम खुद ही नहीं आओगे। फिर उसने कहा कि नो, जो मैं चाहता हूँ मैं तो वही करूँगा। तो मिस्टर लैम ने कहा अगर तुम चाहते हो तो वो मैं कैसे बता सकता हूँ, वो तो तुम ही डिसाइड करो कि व्हाट यू वांट। दे टेल मी, वो मुझे बताएंगे। डू यू हैव टू अग्री, क्या तुम मानोगे? आई डोंट नो व्हाट आई वॉन्ट समथिंग नो वन एल्स इज गॉट और एवर विल हैव, समथिंग जस्ट माइन लाइक दिस गार्डन, आई डोंट नो व्हाट इट इज। उसने कहा कि नो, मुझे नहीं पता कि क्या मैं चाहता हूँ, मुझे कुछ चाहिए जो किसी के भी पास नहीं हो, वो बिल्कुल अलग हो, वो हमेशा के लिए मैं चाहता हूँ जो सिर्फ और सिर्फ मेरा हो, जैसे कि ये गार्डन। उन्होंने कहा दैन उसके बाद ये बोला मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन ऐसा ही है। मतलब द डिज़ायर द डेरी वॉज हैविंग, ही वॉन्टेड टू यूनिक और डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर्स, मुझे सिर्फ सबसे अलग चाहिए जो सिर्फ मेरा हो। यू कुड फाइंड आउट इज कॉल्ड सर्च, तुम इसका पता लगा सकते हो कि तुमको क्या चाहिए और जो किसी के भी पास नहीं हो, बिल्कुल अलग हो। टेरी ने कहा हाउ, कैसे? वेटिंग, वॉचिंग, लिसनिंग, सिटिंग हेयर और गोइंग देयर, आई हैव टू सी द बीज। उसने कहा कि देखो इसके लिए वेट करना पड़ेगा, देखो चारों तरफ, लोगों को सुनो, बैठो और जाओ, यहाँ वहाँ जाओ, बैठो भी, सोचो, लोगों को देखो, ऑब्जर्व करो, ठीक है। और उन्होंने कहा कि अब मुझे जाना होगा, मुझे अपनी बीज को देखना है, मधुमक्खियों को देखना है। Those other people who come here, do they talk to you, ask you things? डैडी ने फिर एक क्वेश्चन पूछा, जो